Okay, so ladies and gentlemen, welcome to the class. And the topic which we are starting today, definitely, oh, sorry. ओके, चंद सेकंड्स में मल्टीमीडिया ऑन हो जाएगा और आपको जो फिजिकल है उनको ऑन यहाँ पे स्क्रीन पे, और जो कि फिजिक ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नजर आना चाहिए। नंबर वन, कैन एनी वन ऑफ यू, शम्स, अरीज, बाबर जलाल, कायनात रूबी एंड एवरीवन, can you listen me? Number one. Number two, is it fine? Number two, my audio and video, which means the screen, is completely shared with you, or is there any issue? And the Yes, chat sir. is No, sir, no I issue. can listen you. okay, nice. तो आप मुझे लिसन Sure. कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से कायनात ने कहा कि उसको नहीं मिल रहा, इज इट? नहीं सर, मिल रहा है। Okay, nice. Video is also fine and audio is also fine. That's great. That's great. And then we should continue. Ladies and gentlemen, just to brief, लास्ट वीक हमने क्या किया? हमने लास्ट वीक और वो दोनों मोर ओवर, आज के अगर आप अपने ग्रुप को विजिट करें, जो कि आपको करना चाहिए, तो उसमें आपको कुछ स्लाइड्स, थैंक यू वेरी मच नसरुल मिनल्लाह, आपने भिजवा दिया कि जी एवरीथिंग इज गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। तो आपको 2 चैप्टर्स की स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर दी गई, तो आप इसको अपने पास सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ब्रीफली बता दूं कि आप सबको, मां सिवाय 2 स्टूडेंट्स के, उनको नेट अकेड ज्वाइन नहीं किया, बाकी सब ने कर लिया, विच इज वेरी 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 गुड। ठीक, तो अगर मैं ये देखें नेट अकेड आपको नजर आ रहा है, तो 2 चीजें आपने इस्तेमाल करनी है पढ़ाई के लिए, समझने के लिए। यू विल बी इंटरिंग योर यूजर नेम हियर, which is in my case ahsanhaq@gmail.com, and he will ask you the password, and password is not known to anyone including the Cisco। तो इसलिए कभी भी बात स्टूडेंट होता है कि जी मेरा पासवर्ड गुम हो गया है या मुझे नहीं याद, तो वो कभी इंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं और कभी वो सिस्को को मेल करते हैं, जी मेरा पासवर्ड गुम हो गया, मुझे नहीं याद। तो सिस्को को भी नहीं पता, उन्होंने आपके लिए ये फीचर रखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड। तो अगर आपका पासवर्ड आपको नहीं याद, तो फॉरगेट पासवर्ड करके आपको ईमेल आ जाएगी और उसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आप अपना पासवर्ड रिफ्रेश कर रहे हैं, नया कर लें और फिर याद रखें। तो क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी यहाँ सेव किया हुआ है, दैट्स द रीजन आई कैन गो विद द लॉगिन, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड you can see here that something like this, which is introduction to networks, आपको यहाँ पे नजर आएगा डेफिनेटली देयर इन माय क्लासेस, तो इसमें आपको ये नजर आएगा इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क। So you can just click this introduction to networks, and the complete, some people call it a book, but I call it a multimedia book, because it gives you the audio, videos, and text, and multiple choice questions, final exams, all the exams. So they are covered here. Like for example, you can see here that when we'll be covering the first 3 chapters, after this you will have an exam, which has been logged by the instructor now. But at that time, the instructor will open it, for example, for a week, and you will attempt it at your home. Similarly, number 4, 5, 6, 7 chapter, when we'll finish, another exam will be there. So what I want to show you, that this is a very important resource which you must use during your this course. For example, today the chapter which we are starting is the networking today. So you can see that all the data, if I make it bigger later on, so you can see that all the information is available here. So you can read it, you can listen to it, you can see the objectives. That is very important. First of all, you must know what are the objective of this course, what is the objective of this topic or this chapter or this module. So clearly they mentioned what are the topics which need to be covered and what are the objective of covering these titles. Then you can see in the last class I showed you how to download and install Packet Tracer in the last class.
आज दोबारा भी बता दूंगा क्योंकि शायद कुछ लोग नए हो। तो किस तरह आप ये डाउनलोड करेंगे, ऑल द स्टेप्स आर मेंशन्ड हियर। फर्दर you will, if there is any issue, a video is here. That's the reason I don't call it just a book. It is a multimedia which give you everything. So there's a video here, then you can go to the next topic, and I will be explaining all this. Doesn't mean कि जी मैंने आप पे छोड़ दिया, लेकिन just बताना मकसद ये है कि how good the material here। ठीक है जी। तो एक आप ये मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, आप लोग ये जो स्लाइड्स मैंने इसी से बनी हुई हैं, ये स्लाइड्स इसमें इस्तेमाल की जाएंगी। थर्ड, आपको मेरी वीडियो भी मिलती है, जो लेक्चर कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको भी यूज करेंगे, डेफिनेटली करने चाहिए। और नंबर 4, इसलिए हम दो तरह को, अगर मैं प्रायोरिटाइज करूं तो नंबर 1 आई प्रायोरिटाइज दी फिजिकल क्लासेस लाइक न्यू पीपल हियर। लेकिन इट डजंट मीन कि हम बाकियों को अच्छा नहीं समझते। मिसाल के तौर पे प्रॉब्ली दिस इज द फर्स्ट क्लास, मल्टीपल जगहों से तो हमारे स्टूडेंट होते ही थे, लेकिन दिस इज द क्लास फ्रॉम वेयर वी हैव द स्टूडेंट फ्रॉम केपी, फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम सऊदी अरेबिया एज वेल एज यूएई। तो अब लाजमी तौर पे कोई यूएई से सिर्फ पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि वहां पे इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे वो अगर पढ़ लेना चाहते हैं, वन ऑफ दी ऑब्जेक्टिव या वन ऑफ दी गोल कि जी ऑनलाइन उनको ये फैसिलिटी, वही चीज जो कि वहां पढ़ाई जा रही है, एग्जैक्टली द सेम इज बीन टॉट हियर। तो दैट्स अगेन गुड। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो उससे ना रोकें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उससे ना रोकें, वो कर दें। उससे फायदा ये होगा कि आपका भी क्लैरिटी हो जाएगी। और नंबर टू, जो लोग बाकी क्लास में हैं, आपके पास इस क्लास के हिस्सा हैं, उन तक भी वो क्वेश्चन पहुंचा दिया जाएगा और जवाब भी पहुंचा दिया जाएगा, ताकि इट मे बी क्लियर। ठीक है जी। तो पहली चीज, क्योंकि कुछ लोग, मैंने कहा कि प्रॉब्ली आज उनकी पहली क्लास है, तो मैं ये बताता चलूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि इट इज वेरी मस्ट कि आप ये जब नेट अकेड पे चले जाएं, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो इसको मैं फॉर टाइमिंग क्लोज करके, तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे दो टैब्स, एक नेट अकेड विच इज द लेटेस्ट सिस्को की तरफ से। इन 2023 नहीं सॉरी 2024 अगस्त में इन्होंने इस पुराने वाले को छोड़ के इस नए पे शिफ्ट हुए। बेसिकली इनके पहले दो, जिन लोगों को पहले से इसका पता है, इनके दो डिफरेंट पोर्टल्स थे। एक का नाम था नेट अकेड और दूसरे को ये नाम देते थे स्किल फॉर ऑल। तो इन्होंने अब इन दोनों को मर्ज करके इस नेट अकेड में डाल दिया। प्लस जो नया नेट अकेड है, इसमें एक चीज और ऐड है जिससे आप डेफिनेटली खुश होंगे कि इन्होंने आपके सीसीएनए को पावर्ड बाय एआई कर दिया है। तो इसका मतलब है कि जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तो पहले कोर्स में तो इतना नहीं है, स्पेशली वो हमारे ऑटोमेशन का काम जो होता है वो लार्ज नेटवर्क्स में आता है। तो आप में से जो लोग इसके तीनों कोर्सेज की तरफ जाएंगे, वो सम पार्ट ऑफ दी एआई को भी देखेंगे कि हाउ टू यूज दी एआई टू ऑटोमेट योर वर्क। और जो लोग इंडस्ट्री में हैं उनको पता है कि ऑटोमेशन की आज के दौर में क्या वर्थ है। तो जो प्योर स्टूडेंट्स हैं, जिनको नहीं है उनका इंडस्ट्री का पता, तो उनको इतना नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग इंडस्ट्री में हैं, दे नो व्हेन यू आर कैपेबल टू डूइंग समथिंग ऑटोमेटेड, इसका मतलब है कि आप 20 लोगों का काम, 50 लोगों का काम एक बंदा करता है, तो फिर सैलरी भी उसी तरह लेता है। ठीक है। तो जेंटलमैन, न्यू कमर्स, आपने करना ये है कि यू विल बी गोइंग टू द लेगेसी नेट अकेडमी। इस क्लास में कोई है जो कि फर्स्ट टाइम आ जाए? आप हैं। व्हाट्स योर गुड नेम? उमैर। आपने मेरे ख्याल अभी तक ज्वाइन नहीं किया। उमैर जलाल आप हैं। आपने पहले से इसमें अपने आप को एनरोल कराया हुआ है ना, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो क्यों नहीं ज्वाइन करते? अच्छा, मैंने कहा कोई इशू है तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको आज सुबह मैसेजेस भी किए कि उम्मीद है कि आपको मिले होंगे। एक है हमारे खालिद महमूद और एक है उमर जलाल। उमर जलाल तो आप है, खालिद महमूद नहीं। तो व्हाट्स योर नेम? उमैर खान। आप इनरोल्ड हैं? ठीक है, फिर आपको सब कुछ मिला हुआ है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने करना ये है कि स्पेशली जो पहली दफा आ रहे हैं, दे शुड गो टू द लेगेसी
नेटअकैड, इसको क्लिक करें तो आपका पोर्टल में थोड़ी सी चेंज आ जाएगी। ये देखें जी, पोर्टल में थोड़ी सी चेंज आ गई। इवन आप इंस्ट्रक्टर की तरह तो वही हैं। आप यहाँ पे अगर ऐसा है भी तो माय क्लासेस पे वापस चले जाते हैं। नहीं हुआ, दोबारा लेगेसी नेटअकैड को, ये जी अब आपको ले जा रहा है ऑथेंटिकेटिंग, प्लीज वेट। तो ये जी पुराना लेगेसी नेटअकैड आ गया। इसमें आप रिसोर्सेज में चले जाएंगे। कहाँ पे चले जाएंगे? और रिसोर्सेज में आप चले जाएंगे कोर्स या पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज में। पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज को जब आप क्लिक करेंगे, पैकेट ट्रेसर, तो यहाँ पे आ रहा है पैकेट ट्रेसर डाउनलोड पेज। जब आप इस पैकेट ट्रेसर डाउनलोड पेज को क्लिक करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आपको यहाँ पे ये फैसिलिटी मिल जाएगी कि भाई यू वांट पैकेट ट्रेसर फॉर विंडोज और फॉर यूबंटू और फॉर मैक। So whatever the operating system you are using, mostly you people are using the Windows. So then you have to check whether your operating system and hardware is 64-bit or 32-bit. For good performance, कैसे check करेंगे? You should go to the system info. You should go to the system info, and in the system info, you will open it and you will check the system type. And here it is shown that it is a 64-bit processor. Is it fair? तो 64 बिट प्रोसेसर है क्योंकि ये, तो आप यहां से 64 बिट के लिए इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद लास्ट क्लास में उसकी वीडियो मौजूद है, आपको प्रोवाइड कर दी गई हुई है। आप चेक कर लें कि उसको इंस्टॉल करना इज जस्ट सम क्लिक्स एंड सम नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो उसमें कोई टेक्निकल हार्ड वर्क नहीं है। तो बस बाय डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग इज मस्ट। पहली बात। दूसरी बात, हमें ये हम क्यों, फिर लाजमी तौर पे आपका क्वेश्चन होगा कि वाई पैकेट ट्रेसर। आपका क्वेश्चन होगा वाई पैकेट एंड व्हाट इज पैकेट ट्रेसर। मे बी किसी को ये मे बी अगर नहीं पता तो दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि व्हाट इज पैकेट ट्रेसर एंड व्हाई आई एम यूजिंग इट। एंड द आंसर इज लेडीज एंड जेंटलमैन, पैकेट ट्रेसर इज ए सिमुलेशन टूल। सिमुलेशन टूल, जिसको आप कह सकते हैं मॉडलिंग टूल। मॉडलिंग टूल फॉर सिस्को इक्विपमेंट, फॉर सिस्को इक्विपमेंट स्लैश नेटवर्क्स। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द पैकेट ट्रेसर। अब आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सिमुलेशन किसे कहते हैं या मॉडलिंग किसे कहते हैं। ठीक है ना जी, ये मॉडलिंग किसे कहते हैं या सिमुलेशन टूल किसे कहते हैं। एंड द ब्रीफ आंसर इज, जैसे मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में भी बताया था कि मिसाल के तौर पे इफ यू आर, एग्जांपल मैंने आपको प्रॉब्ली ये दी थी कि अगर आपने टीवी पे देखा होगा कि आपके पास एक खातून है या कोई जेंटलमैन है जिसके दांत में बड़ा दर्द है, तो वो ऐसे शो करता है कि although उसको नहीं है दर्द, लेकिन वो शो ऐसा करता है कि भाई वो बड़ा तड़प रहा है दर्द से। एंड देन ही यूज सेंसोडाइन रैपिड, और जूई वो लगाता है एंड वो ऐसे शो करता है कि जी उसका तो सारे दर्द खत्म हो गए हैं। इसका मतलब है कि वो उस वक्त मॉडलिंग कर रहा होता है पहले एक पेशेंट को, और फिर वो मॉडलिंग कर रहा होता है एक पेशेंट को जो कि जिसको रिलीफ मिल गया है, जिसको सुकून मिल गया है। तो इसका मतलब है कि जब किसी चीज को आप मिमिक करते हो तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड मॉडलिंग। ठीक। फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे हम इसी अमल को सिमुलेशन भी कहते हैं या मॉडलिंग भी कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि पैकेट ट्रेसर कैसा सिमुलेटर है। तो ये जनाब सिस्को के जितने भी इक्विपमेंट हमारी यूज के लिए जरूरी है, मिसाल के तौर पे हमें स्विचेस चाहिए, मिसाल के तौर पे हमें राउटर्स चाहिए, मिसाल के तौर पे हमें फायरवॉल्स चाहिए, मिसाल के तौर पे हमें वायरलेस डिवाइसेस चाहिए, मिसाल के तौर पे हमें मुख्तलिफ मीडियाज चाहिए। तो एक तरीका तो ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, एक तरीका तो ये है कि आप इस किस्म के, मिसाल के तौर पे इफ आई कैन शो यू ऑन द स्क्रीन, आप इस तरह का हार्डवेयर इस्तेमाल करें और इस पर प्रैक्टिस करें। क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये है इस कोर्स का कि आपको ऐसी स्किल्स दे दी जाएं जो कि मार्केट में कम लोगों के पास है, ताकि मे बी यू हैव ए BS डिग्री और यू मे हैव MS डिग्री लेकिन यू डोंट हैव द स्किल्स। दैट द रीजन
इंडस्ट्री आपको पसंद नहीं करती, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं तो फिर आपके साथ वो बात करने के लिए खुश हैं। अब ऑलवेज हैविंग okay, so always having the hardware is never possible. Even a university like Stanford, gentlemen, a university like Stanford can't afford कि वो सारा चीजें आपको प्रोवाइड करे। अगर चले यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड कर भी देते हैं तो इट कांट बी प्रोवाइडेड एट होम, या दोस्त स्पेशली जो मेरे इस वक्त ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे कि जी चले हार्डवेयर आपके पास तो है लेकिन हमारे पास तो हार्डवेयर नहीं है, ट्रूली सैड। लेकिन दी ऑब्जेक्टिव ये है कि इस किस्म के टूल्स के साथ हम आपको एग्जैक्टली वही मिमिक्रिंग का रोल दे सकते हैं कि जी वी हैव दिस समथिंग, जिसपे आप वही सब कुछ सीख सकते हो जो कि आप प्रैक्टिकली हार्डवेयर के साथ करते हो। क्लियर होगी मेरी बात जी? ओके, तो ये तो था समथिंग अबाउट दी प्रीवियस क्लास जो हमने किया। प्रीवियस क्लास में हमने एक और भी कहा कि हमने कंपेयर किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, किसको? एक तरफ रियल हार्डवेयर को और दूसरी तरफ इसके साथ हमने पैकेट ट्रेसर, जो कि अभी आपको पता चल गया है कि वो एक सिमुलेशन टूल है। तो एक तरफ मैं पैकेट ट्रेसर रन कर रहा था और दूसरी तरफ मैं रियल हार्डवेयर को रन कर रहा था, और आपको नजर आ रहा था कि दोनों में कोई मसला एग्जैक्टली सेम है। कोई आपको उसमें नजर नहीं आया कि नहीं यहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि आप घर पे अगर कोई प्रैक्टिस करते हैं तो कम से कम आपको एक इजी टूल मिल गया कि यू कैन प्रैक्टिस। ठीक है, हार्डवेयर के साथ जब आप कनेक्ट हुए थे, इफ यू रिमेंबर, तो हमने आपको बताया था कि आप, क्योंकि अगर मैंने लास्ट टाइम भी ये लफ्ज इस्तेमाल किए थे कि अगर ये मेरे पास एक सिस्को का स्विच है, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे कि आप अपने लिए कोई लैपटॉप खरीदते हैं, कोई मोबाइल खरीदते हैं, तो आप उसका कीबोर्ड भी देखते हैं, आप उसका आउटपुट की स्क्रीन भी देखते हैं, यानी कोई इनपुट और आउटपुट डिवाइस उसके साथ होता है। जैसे लैपटॉप है मेरा इस वक्त, तो मेरे हाथ में माउस है, इनपुट डिवाइस है। इसी तरह कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है। इस तरह ये स्क्रीन है, आउटपुट डिवाइस है। लेकिन इसका कोई इनपुट या आउटपुट किसी भी जो हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, उनका कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं होता। लेकिन जब ये कंपनी से बन के आते हैं तो ये एग्जैक्टली हमारी नीड के लिए काफी नहीं होते। दैट द रीजन वी हैव टू कनेक्ट आवर सेल्फ टू दिस टूल, टू दिस मशीन, टू कॉन्फ़िगर इट so that it should work according to our needs, and our needs keep on changing. तो इसलिए हमें कॉन्टिन्यूसली इसको अपडेट करना होता है, यानी कॉन्स्टेंटली हमें इसको कॉन्फ़िगर करना होता है। सिर्फ इसको नहीं, राउटर्स को भी करना होता है। सिर्फ ये राउटर को नहीं, वायरलेस डिवाइसेस को भी करना होता है। मिसाल के तौर पे आपके घरों में, आपके बिजनेस में, आपके कॉलेजेस में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में जगह जगह पे वायरलेस रूटर्स लगे हुए हैं। हाउ दे वर्क? डेफिनेटली somebody like you have to configure them, have to install them, have to implement them. तो वो भी करना, इसलिए बाजू का उसके बैकएंड के ऊपर कोई कंट्रोलर होता है जो कहते हैं वायरलेस लैन कंट्रोलर, वही उसको भी कॉन्फ़िगर करता है, उसको भी मैनेज करता है। तो इसी तरह आपके कोई सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं, उनको भी कोई कॉन्फ़िगर करता है, उनको भी कोई मेंटेन करता है। तो कहने का मकसद ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन कि कोई भी डिवाइस इस हालत में नहीं आता मार्केट से कि भाई वो आपकी 100% रिक्वायरमेंट पूरी करता है। नो वन, इवन 20% भी नहीं करता। ओनली व्हाट दे प्रोवाइड यू, ओनली दी ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी, और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो आप सिस्को का राउटर इस वक्त यूज कर रहे हैं स्विच, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका नाम है iOS। इंटरनेट ऑपरेटिंग, जैसे विंडोज का होता है ना, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, इसी तरह यूबंटू, इसी तरह फिडोरा, इसी तरह काली, इसी तरह पैरेट। तो डिफरेंट ऑपरेट, मैक, एंड्रॉइड, ऑल आर दीज आर दी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस मशीन पे इंस्टॉल्ड है, दैट इज कॉल्ड iOS, एंड वी नीड टू प्ले विद इट।
जितना हमें विंडोज में अपने काम करना आता है, इसी तरह हमें iOS में भी काम करना आना चाहिए। although कि सिर्फ iOS नहीं है, इसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्को की तरफ है। मिसाल के तौर पे iOS XE, iOS XE, iOS XR and NXOS. So these are the different operating systems which are installed on different machines of Cisco. So depending upon your शौक कि आप कितना सीखना चाहते हैं, किस हद तक जाना चाहते हैं, वो आप क्लियर होगी मेरी बात जी। ओके, तो हमने कल लास्ट क्लास में कहा था कि हमें इस रियल हार्डवेयर के साथ अगर खेलना है तो हमें कोई टर्मिनल सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना होता है। टर्मिनल सॉफ्टवेयर, टर्मिनल सॉफ्टवेयर। और जो टर्मिनल सॉफ्टवेयर हमने लास्ट क्लास में, टर्मिनल सॉफ्टवेयर अपनी लास्ट क्लास में इंस्टॉल किया था, दैट वाज पुटी। तो आपने putty.org पे जाके, putty.org पे जाके इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था, और फिर इस पुटी को इस्तेमाल करके हमने इस हार्डवेयर के साथ हम कनेक्ट हो गए थे। फिर हम अपना इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस तो लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो कमांड्स एक्चुअली इस हार्डवेयर के ऊपर, यानी कि स्विच के ऊपर हो रही थी, कॉन्फ़िगर हो रही थी। क्लियर है एवरीवन? कोई क्वेश्चन अभी तक? जी बिल्कुल, जैसे कि हर कंपनी कुछ ऐसे ऑपरेट, अच्छा क्वेश्चन है कि जनाब क्या iOS सिर्फ सिस्को के लिए है? तो मेरा जवाब है जी बिल्कुल, क्योंकि मेजॉरिटी डिवाइसेस जो हैं वो जो कि उस पे आते हैं नेटवर्किंग में, उनके कोई ना कोई वेंडर होता है। जैसे कोई कहीं कोई चीज होगी वो सिस्को की होगी, कोई हवावे की होगी, तो दे पुट देयर ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर प्रोप्राइटरी, विच आर प्रोप्राइटरी। अब क्या मतलब है प्रोप्राइटरी का? प्रोप्राइटरी का मतलब ये होता है कि इस कंपनी के अलावा इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पे आप विंडोज इस्तेमाल करते हैं, आज तक आप विंडोज इस्तेमाल करते हैं, यूजर जरूर है, लेकिन आपने कभी उसमें कोई चेंजेस नहीं की, ना कर सकते हैं। इवन आपको हर एक कोई मसला भी होता है तो फिक्स कौन भिजवाता है, पैच कौन भिजवाता है? माइक्रोसॉफ्ट। तो यहां पर भी सारा जो ये ऑपरेटिंग, चारों ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिस्को के प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इनको हम यूज कर सकते हैं, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस है। यानी इस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है वो कहीं गुलाजी से नहीं खरीदा गया, वो सिस्को से खरीदा गया है और उसका लाइसेंस वर्जन इनके ऊपर इंस्टॉल्ड है। गॉट इट जी? although जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इनके आ रहे हैं, दैट इज समथिंग गुड पॉइंट। इसलिए मैं कहता हूं कि जी हम इस कोर्स के दौरान ना सिर्फ आपको पढ़ाते हैं, बल्कि हम आपको आपकी गाइडेंस को भी का भी ख्याल रखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं क्यों ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि जिसके लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं, इनका जो कोर है वो सिस्को ने अपना इस्तेमाल करने की बजाय लिनक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसलिए आपको कई चीजों में से एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड दैट इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यू मस्ट नो हाउ लिनक्स के ऊपर आप जिंदगी गुजार सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी? ओके। इसके अलावा लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि हम इस स्विच के अंदर 3 डिफरेंट मोड्स हैं। एक यूजर एग्जिट मोड, एक हमने कहा था कि यूजर एग्जिट मोड है, एक हमने, और उसकी निशानी क्या थी कि हमें एक ग्रेटर देन का साइन के साथ हमें प्रॉम्प्ट, क्योंकि याद रखें ये ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली CLI बेस्ड है, कमांड लाइन इंटरफेस लेते हैं, ये GUI बेस्ड नहीं। ठीक है? तो जब हम इसके अंदर जाते हैं तो पहले हमें इस स्विच का नाम लेट करें S1, और साथ हमें ये ग्रेटर देन का साइन मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि हम इस वक्त यूजर एग्जिट मोड में, जो कि सबसे लीस्ट प्रिविलेज मोड है, जो कि सबसे लीस्ट प्रिविलेज मोड है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहां से प्रिविलेज मोड में चले जाएं, आप यहां से प्रिविलेज मोड में चले जाएं, और इसके लिए आप देखेंगे कि आपके स्विच का प्रॉम्प्ट तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे बदल क्या जाएगा, ये ग्रेटर देन का साइन हैश साइन या पाउंड साइन से तब्दील हो जाता है।
आपने कैसे ही किया? तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आप ग्रेटर देन के साइन के आगे लिखे एनेबल। तो जो ही आप एनेबल लिखते हैं तो आपका ये ग्रेटर देन का साइन चेंज हो जाता है हैश साइन से। मैंने ये भी बताया था कि हर एक के ऊपर अगर आपने कमांड चेक करनी हो कि कौन से कमांड यानी कॉन्फ़िगरेशन कमांड आप दे सकते हैं, तो आप इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाएं तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आई कैन डू। मैंने ये भी बताया था कि अगर ये नहीं कि आप आगे आगे तो वापसी नामुमकिन नहीं, वापसी इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड वापसी इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, वापसी इज यू शुड राइट हियर एग्जिट and you will go back into the this greater than sign, which means you will be back in the user exit mode. Okay, and you can come back as well by writing enable. Similarly, when you are in the hash, which means the privilege mode, you should write here configure terminal, and you will see that this prompt has changed from hash to config flash, config or वही नाम S1. And with this, you are in the global configuration mode. You are in the global configuration mode. Again, by using exit, you can go back. And by writing the configure terminal, you can come back to the global configuration mode. G, especially online students, do you have any query? Arij, Babar, Kainat, Mohsen, Muhammad Kazim. G, there is one chat. And the chat is saying, Taimur is saying, no, sir. All clear. Very nice. Excuse me, sir. जी बाबर साहब। अच्छा सर, ये मुझे ये पूछना था, अभी आपने 3 मोड बताया, एक एग्जिट मोड बताया, एक प्रिविलेज मोड और एक ग्लोबल मोड। अभी मुझे ग्लोबल मोड में से वापस अगर जाना है, सॉरी, प्रिविलेज ग्लोबल मोड से वापस जाना है प्रिविलेज मोड में, तो मुझे एग्जिट का कमांड देना पड़ेगा? श्योर श्योर, जो भी आपने कमांड दी, अगर वापसी करनी है तो यू शुड बी यूजिंग दी एग्जिट। और अगर थर्ड स्टेप में हूँ मैं, अभी ग्लोबल विलेज में हूँ, अगर मुझे अनेबल मोड में जाना है तो दो दफा एग्जिट का दो दफा एग्जिट। कमांड। जी बिल्कुल, क्वेश्चन ये पूछा गया बाबर साहब का कि अगर मुझे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे मैं जाना चाहता हूं, मिसाल के तौर पे इन दी लीस्ट प्रिविलेज मोड विच इज द यूजर एग्जिट मोड, तो क्या डायरेक्टली कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं, इट इज ऑलवेज सिस्टमैटिक, इट इज ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप। और सर ये एक और क्वेश्चन है, आपने बोला अगर आपको कोई कमांड पता करनी हो तो आपने क्वेश्चन मार्क डाल के तो वहां पे इंटर डालना है, तो उससे आपको पता चल जाएगी कमांड। और अगर आपने एक और चीज कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में आपने जाना है तो वहां पे आपने कमांड देनी है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल और इंटर। जी बिल्कुल, मैं आपके सामने ये काम 5 मिनट लगते हैं कर देता हूं, बिकॉज द फर्स्ट टाइम प्रॉब्ली यू आर लुकिंग एट दैट, so that it should be clear. ठीक है बाबर साहब? तो बाबर साहब, what I am Yes, doing and what you should be doing as well, that you should go into the search and write here the packet tracer. तो देखें जी, ये पैकेट ट्रेसर, सॉरी पैकेट की जगह मैंने पैकर लिख दिया, पैकेट ट्रेसर। तो यहाँ पे आपको ओपन नजर आ रहा है, जस्ट क्लिक इट, just click it, which I have done already. जी, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपको नजर आ गया कि दैट इज द कंसोल जिस पे, और आप जब करेंगे तो आपको ये यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, मैंने इसको ये वो दे दिया हुआ है प्रॉम्प्ट, क्योंकि मैं हर रोज इस्तेमाल तकरीबन करता हूं कि भाई 3 महीने तक मेरे से पासवर्ड मत पूछो। तो शायद आज 3 महीने कंप्लीट हुए थे, तो मैं सुबह जब काम कर रहा था तो इसने मुझे दोबारा लॉग ऑफ किया। तो आपकी मर्जी, आप जब इसको देंगे तो ये आपको 2 वो टैब्स देगा, उसमें आप स्किल फॉर ऑल को क्लिक कीजिएगा। किसको? स्किल, यानी 2 होंगे टैब्स, एक पे लिखा होगा स्किल फॉर ऑल, मैं यहाँ पे लिखता हूं ताकि आपको याद रहे, स्किल फॉर ऑल, और दूसरे के ऊपर लिखा होगा नेट अकेडमी। अभी इनके नेट अकेडमी में लास्ट टाइम मसला था, इसलिए मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप इसको क्लिक करें। जब इसको क्लिक करेंगे तो वही यूजर नेम जो कि आपको नेट अकेडमी ने दिया, जो कि आपने हमें अपना ईमेल एड्रेस दिया था, वो ईमेल एड्रेस आप यूजर नेम में एंटर कर देंगे, और वही पासवर्ड जो आपने अपने लिए खुद सेलेक्ट किया वो पासवर्ड इंटर कर देंगे, तो इट विल टेक यू, और ये नीचे एक टैब है, अगर उसको आप क्लिक कर देंगे जी 3 मंथ के लिए मुझे इन रखो, क्योंकि अगर वो लैपटॉप आपका पर्सनल है तो आप कह सकते हैं
तो ये 3 महीने तक फिर आपसे दोबारा ये यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पूछेगा, जैसे मुझसे अभी इसने नहीं पूछा एंड ब्रॉट मी टू दिस कंसोल। आई होप इट मेक्स सेंस नाउ, इज इट बाबर सर? यस सर। ओके। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन ये है कि अगर आप थोड़ा सा ये इस साइड पे देखें, ये बॉटम साइड पे, तो आपको मुख्तलिफ डिवाइसेस नजर आ रही हैं। डिवाइसेस तो नहीं, टैब्स नजर आ रही हैं। पहले टैब के ऊपर अगर मैं रखता हूं तो थोड़ा सा आप ट्राई कीजिए, इसके नीचे लिखा क्या हुआ है। इसके नीचे लिखा है नेटवर्क डिवाइसेस। इसका मतलब है कि कौन से नेटवर्क डिवाइसेस यू कैन सी देयर हियर, राउटर्स, स्विचेस, हब्स, wireless devices, security devices, cloud emulation, all are available, which are the network devices, part of the network devices. Whichever we want to use, we can. अभी करके दिखाऊंगा. Then, ladies and gentlemen, we have the second one, which is the end devices. आप पूछेंगे कि भाई नेटवर्क डिवाइस क्या है? Normally, the network devices we call them as the intermediate devices. नेटवर्क डिवाइसेस से क्या मुराद है? इंटरमीडिएट डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस क्या होता है? जहां से ट्रैफिक निकलती है, या जहां से रिक्वेस्ट निकलती है, या जहां पे रिक्वेस्ट खत्म होती है, मोस्टली वी कॉल देम दी एंड डिवाइसेस। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त माय लैपटॉप इज एन एंड डिवाइस, माय मोबाइल इज एन एंड डिवाइस, क्योंकि आई एम सेंडिंग रिक्वेस्ट और दी एप्लीकेशंस आर इंस्टॉल्ड ऑन दीज कंप्यूटर्स और दीज मशीन्स, जिसके जरिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे डिवाइसेस को क्या कहते हैं? एंड डिवाइसेस। अब अगर मैं एंड डिवाइसेस को यहाँ पे क्लिक करूं, ये देखें जी, तो आई हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एंड डिवाइसेस लाइक पीसीज, लाइक लैपटॉप, सर्वर्स, probably some server as well, network component, printers, IP फोन वगैरह वगैरह। इसी तरह the other important is this fire like symbol. If I click it, this is not the fire, this is the connections between the medium. लाजमी तौर पे if I have the end devices, if I have the uh, end devices, intermediate devices, security devices, and middle boxes, these are different type of devices which are used in the network. I need to connect them. Somewhere I might be needing the wireless, sometime I might be needing the copper, sometime I might be needing the optical fiber. So in all the cases, all such links or mediums are available here. If I click it here, you can see here, that is the console. जब मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखता हूँ तो आपने यहाँ देखना है। देखें जी, ये मैंने रखा तो कंसोल। Now what is the console cable? Ladies and gentlemen, here is the console cable. Here is the console cable. Here is the console cable. Let me show you. Yeah, this is the console cable, the blue one. This console cable is used for sending commands, only the command, no data, only the command from your laptop, which means the management PC, I will call it always. The management PC or the admin PC can send the commands to the devices, and they are sent to this cable, and this is called the console cable. Similarly, you can see here these copper straight cable, copper straight through. नजर आ रहा है? यहाँ पे आपने देखना है, तो इट इज राइटिंग हियर, देखिए यहाँ देखना है, तो इट इज कॉपर स्ट्रेट थ्रू. Copper straight through is to connect the different type of devices, and they are made of copper. Similarly, you will be making this cable here practically as well. Then you will have the crossover cable. This is again a copper cable, but used to connect similar devices. For example, if I want to connect a switch with a switch, or if I want to connect a laptop with a laptop without a switch, yeah, I can do it by using the cross cable. Similarly, this red one is the optical fiber cable. Sometime, like for example, the switch which you are looking here with along with the door, that is connected to a switch downstairs, and that is through the optical fiber here in the lab. So here, if I want to simulate it, yeah, we can simulate it by using that optical fiber. Similarly, ladies and gentlemen, we can in the past we used to connect our devices via phone. अब वो जमाना गया, लेकिन the choice is still there. Then, ladies and gentlemen, is the coaxial cable. Probably आप जानते होंगे, आज भी आपके घरों में जो
केबल टीवी लगा हुआ है, दैट इज थ्रू द कोएक्सियल केबल, अल्दो नेटवर्किंग में उसका इस्तेमाल कम से कम हो रहा है या हो चुका है. Then is these two as the serial cables. Serial cables. Why we use it? We use them for to show long distance communication. मिसाल के तौर पे एक राउटर हमने इवन इस टेबल पे रख लिया, दूसरा राउटर हमने दूसरी टेबल पे रख दिया. But we are assuming that one router is in Peshawar and another router is in, for example, in UAE. So in between them, we expect that there is some medium, and that is a serial medium. So here we can work with the serial medium as well. तो बताने का मकसद ये है, डिटेल में हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें जाते रहेंगे. मकसद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप इस टूल, ये स्किल को जब सीख लें तो मुख्तलिफ किस्म के ट्रैफिक्स को, मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस को, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल्स को बताऊंगा कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं. प्रोटोकॉल को आप यहाँ पे इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं. आपको बाकी लोग ये कहते हैं कि जी आप इजीली चीजों को, फलानी बुक ले लो, उसमें इजी लिखा हुआ है, इजीली आपको पढ़ लोगे. हम यहाँ पे कहते हैं पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट, देखना इज इंपॉर्टेंट. तो वी यूज सच टूल्स to show you devices, to show you traffic, to show you protocols, to show you applications, and that make you more understanding. Your understanding become very clear then. Does it make sense? QG, anyone from the online? Is there any item, anything which is disturbing you, or any feedback which you feel can improve the way of teaching or methodology? If you feel, one thing more, ladies and gentlemen, we are using Zoom for this online classes, which is very good, but it has one issue that it gives me a class duration of only 40 minutes. So 1 minute में, within a minute, this connection will drop, but it doesn't mean the class is over. I will be sending you another link. जैसे मैंने आपको पहला link भेजा, I will be sending you another link. Just click it and rejoin us. Please don't go away. Okay? So let me see the here. Okay, no sir. Okay, nice. अब आपके बाबर साहब, आपके सवाल का जवाब फिर मैं I want to go back to my topic. For example, Okay, I want to click here the network devices, and the network devices I am interested in the switches. So I take one of the switch like this one. So I click it and place it on the canvas. Okay. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब इस स्विच से कनेक्ट होने के मैंने बताया था, इफ यू रिमेंबर, कि देयर आर टू वेज. एक तरीका तो ये है, एंड इफ इट इज अ न्यू स्विच or even it is a used switch, but you have bought it just now, so the only way is that it should be connected with this through a console cable. If it is a new switch, चाहे आपने गुलाजी से लिया, लाहौर की किसी मार्केट से उठाया, लेकिन आपके लिए वो नया है, इसका मतलब कि आप उससे कनेक्टिविटी नहीं ले सकते if you don't have the console cable. And once you configured it, you will see that you can connect to this even through remote. मिसाल के तौर पे, probably Babar Saab is in UAE, so he can connect to this switch from UAE. It is remote, or from his home, from the home of the admin, or from the office of the admin. जो भी है, वो connect हो सकता है. So that is called the remote. And we will be looking at that. We'll be configuring a protocol which is called SSH. We can go for the telnet as well, but nowadays we don't prefer telnet. We prefer SSH. Why? We'll look at it. Okay? So, ladies and gentlemen, इसका मतलब है कि I need a console cable. Number one, if it is for the first time, I need a console cable. Now, ladies and gentlemen, I need a console cable, and definitely I need a laptop which will act like a management PC, admin PC. So it means I need further an end device. What I need? An end device. So ladies and gentlemen, you can see here that I go to the end devices and I take a PC from here. I click this PC
and then I place it on some wherever I want on my canvas, and I place it here. Now, two things. One is a intermediate devices, which is Cisco switch, and this switch is by the name. It is 2960 Cisco Catalyst 2960 switch. What is the name of this switch? The name of the switch is, ladies and gentlemen, exactly the name of the switch is, you can see from here, and the name of the switch is Catalyst 2960 plus series switch. क्यों बता रहा हूं? Because you should mention in your resume that you have the experience of working with this switch. क्यों? क्योंकि अगेन जो लोग जॉब पे हैं शायद उनको पता है, और उन जॉब पे जाना है, आप अपना रिज्यूमे जब किसी को देते हैं तो वो उस रिज्यूमे को विद इन 15 सेकेंड ओनली, क्योंकि उसके बाद हजारों होते हैं, वो हर एक को 2-2 घंटे नहीं दे सकता, तो 15 सेकंड के अंदर अंदर देखता है कि इन और आउट। तो अगर उसके पास वो स्किल्स, आपको इस पे भी हम थोड़ा ट्रेन करेंगे कि किस तरह आप अपना रिज्यूमे लिखो, क्योंकि दीज आर द सॉफ्ट स्किल्स। और बदकिस्मती से हमारे लोगों में, इस रीजन के लोगों में सॉफ्ट स्किल्स की सख्त कमी। टेक्निकल स्किल में भी हम कोई आइंस्टाइन के आसपास के लोगों में से नहीं है, लेकिन सॉफ्ट स्किल में भी हम बड़े कमजोर हैं, इसलिए हमें बाकी लोगों के साथ कंपीट करने में मसले होते हैं। तो वो तो हम अब साथ साथ इनको पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें इस डिवाइस के, मैंने जैसे कहा कि हाँ, आई वाज सेइंग, इसको जब आप अपने उसमें लिख देंगे तो आप यू शुड एक्सपेक्ट कि आपका जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो इसके पास आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा, एंड इफ यू डोंट देयर दैट विल बी पॉजिटिव समथिंग। हाँ, अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर भी करूंगा, हमारी एक स्टूडेंट की है जो कि आजकल पोस्ट ग्रेजुएट कर रही है, प्रॉब्ली आपने सुना, देखी भी हो, नहीं भी देखी तो मैं आपको भिजवाऊंगा। ही इज डूइंग हिज मास्टर्स फ्रॉम आयरलैंड। उसने अपनी एक वो वीडियो बनाई कि जी, नॉट डोंट गो फॉर दीज डिग्रीज एंड दीज सर्टिफिकेट, द रियल थिंग इज योर स्किल्स। इफ यू नो, देन लाइफ इज वेरी इजी। डिग्री या लाइफ इजी नहीं बनाती, ठीक है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे अब आपको नजर आ रहा है कि एक पीसी है और एक स्विच है। अब इनको मैंने कनेक्ट किससे करना है? मैंने अभी बताया, कंसोल केबल से। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल गो टू दिस मीडियम विच द कनेक्शंस, एंड आई विल चूज द कंसोल। देखिए द कंसोल, जब मैं यहाँ पे इस पे रखता हूं तो आप यहाँ पे देखेंगे, तो देखिए मैंने यहाँ पे रखा तो नीचे कंसोल आ गया, इसका मतलब दिस केबल इज अ कंसोल केबल। तो व्हेन आई क्लिक इट and I go to the either to the switch or to the PC, whatever you like. For example, I go to the PC first, and you will see one of the port is console, and the rest of the ports are the data ports. In this case, we have 24 fast Ethernet ports. By fast Ethernet means that it supports 100 megabit per second. It supports 100 megabit per second, while the gigabit port shows that it supports 1 gig, which means 10 times faster. These are the faster ports, your choice. But in this case, we can't use any one of the data ports. We have to use the console port. Very right. So I take the console, connected the console port here, and I went to the PC. In the PC, ladies and gentlemen, I will click the serial port, which is called RS232. When I click it, so it means this PC is now connected to the switch. Now through the input of this, with whether I'm using the keyboard or I'm using the screen, yeah, I can. Ladies and gentlemen, when I click this switch, this device, I should go to the program, to the desktop, and here is the terminal. That is representing the terminal software, which last time I discussed as the putty. So when I click the putty and I say okay, so you can see that I got the something which is representing the switch. It is showing me press return to get started. So it is no more laptop PC0, sorry, although it is shown here as the PC0, but I am getting something from the switch. So which means now मैं हूं तो PC पे बैठा हुआ,
लेकिन मेरे सारे काम इस स्विच पे हो रहे हैं। मेक सेंस? लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मुझे क्या कह रहा है? प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। इसका मतलब है मुझे यहाँ पे रिटर्न को ये कहता है इंटर, तो कहता है इंटर प्रेस करो। मैंने जो ही इंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं प्रीवियस टाइम भी आपने देखा था कि ये स्विच में मुझे ले गया। दैट इज द नेम ऑफ, दिस इज द होस्ट नेम विच इज बाय डिफॉल्ट, विच इज बाय डिफॉल्ट। हमने लास्ट टाइम इसके होस्ट नेम को चेंज भी किया था। क्यों किया था? क्योंकि मिसाल के तौर पे आई एम द एडमिन, एंड एडमिन साहब जो हैं, एडमिन साहब जो हैं वो उसके पास 200 स्विचेस हैं और सबका नाम स्विच है। हाउ इट्स पॉसिबल टू कम्युनिकेट? चलें, अगर मैं कंसोल टेबल के जरिए कनेक्ट होता हूं तो चलें, इट सीम नॉट बैड। लेकिन व्हेन आई कनेक्ट फ्रॉम रिमोट, तो आपको पता है कि जब आप किसी से मोबाइल पे बात करते हैं तो पहले कहते हैं अशरफ खान खबर है कि, इसका मतलब है कि यू नीड द नेम, ए यूनिक नेम। So that's the reason we changed last time this name as per the requirement. नाम देना कोई टेक्निकल वो नहीं रखता, नाम देना रखता क्या है? आपकी जरूरत क्या है। मिसाल के तौर पे if this switch is connected installed in the Cisco Academy or Cisco Lab, you may say Cisco_Acad, तो आगे पता चले कि अगर आप रिमोटली इस पे आए तो you should be clear that I am working on this switch now. कुछ बात समझ आ रही है? ओके नाइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बाबर साहब मैंने यहां पे कहा कि आप इनेबल लिख दें, ENABLE, और इनेबल लिखा मैंने, इनेबल लिखा, इंटर किया तो आपने देखा कि मेरा प्रॉम्प्ट चेंज होकर हैश बन गया। इसका मतलब कि नाउ आई एम इन दी प्रिविलेज मोड। सिमिलरली अगर इफ आई राइट हियर एग्जिट, तो यू विल सी दैट आई एम आउट एंड आई एम बैक ऑन दी स्विच, which means the greater sign, which means the least privilege mode, which means the user exit mode. Now the question is, मैं यहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ? Which commands I can give from in this mode only? I should place a question mark here, and it shows me these are the commands which are available to me, which I can give to the device, which means the switch. जी बाबर साहब, अब क्लियर हुआ? यस सर। Okay, nice. Similarly, if I give here enable, if I give here enable and I enter, so you saw that it is now hash. Now, if I give a question mark here, you can see, I can give more commands, more powerful commands. And even it is not finished, it is saying more. So if I press here enter, I can go further. What commands I can enter in this mode? And we will be doing this, not an issue. Just to show you. इसी तरह if I write here configure terminal, configure terminal, so you will see here that my prompt changed from switch, from only switch hash to switch config. Yeah, which means I am in the global configuration mode now. See, ladies and gentlemen, any question? If I want to go back, similarly exit, exit, and I am out. I'm back in the, if I want to go even back, again exit, and sorry, I did something wrong. I wrote double E. Now it is doing something. I will explain to you. It is doing the IP lookup. तो जब गलत कमांड दूंगा तो ये तब मुझे तकलीफ देगा। इससे निकलने का तरीका ये है कि आप इसको अब करेंगे और या तो ये वेट करें, आराम से मेरी तरह चाय उठाएं और पिए और वेट करते रहें। द सेकंड ऑप्शन इज कि आप इसको दें Alt Control 6, तो यू आर आउट। Alt Control and 6, तो आपने देखा कि मैं बाहर आ गया। Alt एक ही जगह पे Alt Control पकड़ के और 6, यानी कि पहले Alt करें फिर कंट्रोल करें फिर डेल करें, 6 करें, जैसे आप लोग विंडोज में करते हो Alt Control डेल। क्लियर एवरीवन? ठीक है। ये सर ये कमांड Alt Control +6। जी जी। जब अगर गलत कमांड आप दे दें, जैसे मैंने एग्जिट की जगह आप देख रहे हैं स्क्रीन पे EXIT गलती से लिख गया, दैट द रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेटवर्क पीपल, बी पेशेंट, जल्दबाजी नहीं करनी। आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल
एंड दैट वाज बाय ए बुक ऑथर। और वो कह ये रहा था कि जी आई वाज एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेट मी रिकॉल। हाँ, वो कह रहा ये था कि अभी मैं आपको ये बताऊंगा भी कि यहाँ पर भी बाबर साहब, एक इशू ये है कि अगर मैं कंप्लीट कमांड ना भी लिखूं, पार्ट ऑफ द कमांड भी लिख कर, तो इट माइट बी राइट। उसने क्या किया कि उसने लिखा एस एच। अब एस एच से शो भी बनता है, एस एच से शो भी बनता है, एस एच से शट भी बनता है। वो उस मोड में था कि जहां पे इस कमांड का मतलब था शट डाउन। वो कहता है कि जी मुझसे कोई कई माइल्स दूर था यूएस में, मैं नेटवर्क पे काम कर रहा था और गलती से मैंने एसएच लिख के इंटर कर दिया। जो इंटर किया तो वो उसका वो इंटरफेस था वो डाउन हो गया। अब जब इंटरफेस डाउन हो गया तो मैं उस तक जा भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने दरवाजा खुद बंद कर दिया है। जब दरवाजा बंद हो गया उसका मशीन का, इन अदर वर्ड्स, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं 50 माइल ट्रैवल करके दोबारा उस पर जाऊं, कंसोल के साथ लगाऊं, उसको दोबारा अप करूं। इसलिए कहते हैं कि नेटवर्किंग के लोगों को ऑलवेज हैव टू बी पेशेंट। सोच के जाओ, बाजू का छोटी सी गलती बहुत बड़ा मसले का वजह बन जाती है। माइट भी यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग हों ऐसे जो कि नेटवर्किंग के एरिया में काम करते हो, बिकॉज आई हैव वर्क फॉर मेनी इयर्स इन पाकिस्तान पीटीसीएल एंड आई हैव सीन हाउ टू वर्क देयर एंड क्या आपसे रिक्वायरमेंट होती है और गलती की सजा क्या होती है। एनी आगे बढ़ते हैं जी। तो जेंटलमैन, इसको रोकने का तरीका भी बताऊंगा कि अगर गलत कमांड दे दी जाए, जैसे अभी दे दी, मतलब ये तो एग्जिस्ट नहीं करती थी ना, एग्जिट डबरी के साथ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हाँ, अगर जैसे मैंने अभी कहा एस एच में लिख देता और इंटर मारता, जो भी उस प्रॉम्प्ट में उसका मतलब है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? लेट मी सी के मेरे साथ ऑनलाइन में है काजिम है, अरीज है, बाबर है, कायनात है, मोहसिन है, तो साजिद हैं, शम्स हैं, तैमूर हैं। काइंडली जी अगर मोबाइल को थोड़ी देर के लिए अगर आप लोग ऑफ रखा करें या उस पे रख लिया करें, तो बाकियों को भी आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं जी। तो हम बात ही कर रहे थे कि हमें किस तरह एक स्विच को, ये तो आगाज है, बिस्मिल्लाह है। अब हमने लास्ट टाइम इसका क्या किया था, नाम चेंज किया, नाम हमने सेव किया था, चेंज किया था, जिसको हम नाम को क्या कहते हैं, होस्ट नेम। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने किस तरह ये काम किया था, लेट्स सी इट। फिर हमने सेव भी किया था, अगर आपको याद हो उस पर दोबारा भी थोड़ी सी बात कर देता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन जी, इसके लिए आई नीड टू गो टू द कॉन्फ़िगर। जैसे देखिए मैंने अभी कॉन्फ लिखा ना, मैंने पूरा कॉन्फ़िगर नहीं लिखा। तो ये अगर ये मेरी कमांड एक ही है तो चल जाएगी। अगर मल्टीपल है कॉन्फ से एफ तक के, तो ये मुझसे अगला नंबर मांगेगा कि नहीं जी मैं इससे कोई आगे नहीं जा सकता, आई विल राइट अनदर आई, प्रॉब्ली इट माई वर्क। सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कमांड को लिखें और साथ टैब को दबाएं। ये अगर कमांड एग्जिस्ट करती है इस मोड में, तो खुद ही कंप्लीट हो जाएगी। इससे आपको पता भी लग जाएगा मैं गलत मोड में नहीं हूं, मैं गलत मोड में। जैसे अभी मैंने जो कल से क्या लिखा है, कॉन्फ, ये लिखा है ना, स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आई प्रेस ओनली दी टैब एंड इट कंप्लीटेड, एंड इट कंप्लीटेड। बात समझ आ रही? इसी तरह आई रोट ओनली टर एंड आई प्रेस दी टैब, देखें टर्मिनल खुद ही पूरा हो गया। तो इससे आपको ये फायदा होगा इस ट्रिक से कि आप गलत कमांड कभी भी गलत जगह पे नहीं देंगे। तो देखें जी मैंने कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखा, मैं चला गया ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। यहां पे मैंने लिखा होस्ट, होस्ट नेम, और लेट करेंगे मैंने इसका नाम रख दिया सिस्को अंडरस्कोर सॉरी SW, SW सॉरी SW। तो देखें जी मैंने ये किया, मेरे स्विच का नाम स्विच से बदल के सिस्को अंडरस्कोर SW हो गया। क्या होस्ट नेम बिल्ट इन कमांड है
जो कि हम एज एडमिनिस्ट्रेटर इस्तेमाल करते हैं अपने मशीन्स के नाम को अपनी मर्जी के मुताबिक रखने के लिए। एक्सक्यूज मी सर, जी जनाब। ये सुनिए, जब आपने स्विच का नाम रखा सिस्को अंडरस्कोर SW, उसके बाद आपने सेव करने के लिए इंटर प्रेस किया ना? नहीं नहीं, कोई सेव नहीं हुआ, इट इज नॉट सेव्ड, इट इज स्टिल इन दी। दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि क्या इसका मतलब कहने का क्वेश्चन वाला क्या ये है कि जो ही मैंने इंटर किया तो इट सेव्ड, एंड द आंसर इज नो, इट इज नॉट सेव्ड, इट इज इन दी, इट इज इन द रैम। जिस तरह आप वर्ड में काम करते हैं बाबर साहब, कभी वो खुद ही सेव हो जाता है? नेवर। अगर आपने वहां पे वो किया और अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया, इट्स ऑल गॉन। तो अगर मैं अभी इसको रीलोड दूं, अभी मैं आपके सामने करता हूं जी, ताकि इट शुड बी क्लियर। प्लीज लुक एट हियर, आई एम यूजिंग एग्जिट फ्रॉम हियर, so I'm still the name of my machine is Cisco underscore SW, but I am using reload, which is called reboot. Enter कहता कर दो, सिमुलेशन है, मुझे तकलीफ नहीं है। फिर कहता है कर दो, तो कहता कर दो जी, कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जहां पे ये iOS पड़ा हुआ है इसको कहता है फ्लैश, फ्लैश के अंदर से ये उस इमेज को उठा रहा है और इसने बूट कर दिया, इंटर किया। नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसने नाम ये दिया, नहीं होता। अगर आप ये इसको रिबूट कर जाएं तो इट्स ऑल गॉन। क्यों? क्योंकि इसकी अभी बताऊंगा कि 3 किस्म के स्टोर्स हैं। ये पहले स्टोर में गया है जो कि टेम्पररी। डू यू गॉट माय आंसर बाबर? यस सर। ग्रेट। आप लाजमी तौर पे आपका अगला क्वेश्चन होगा फिर सेव कैसे करूं, क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ द स्विच इज वर्किंग इन ए प्रोडक्शन एरिया, इन ए प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, तो क्या हम काम करते रहेंगे और इस डर में रहेंगे कि जी कभी भी वापडा ने अपना हुनर दिखाया तो वी आर ऑल गॉन? नो, वी कैन सेव इट। हाउ? आई एक्सप्लेन। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब अगर इसको कैसे सेव करें, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास 3 किस्म के स्टोर। पहला स्टोर जो है वो वोलेटाइल है, वोलाटाइल है। वोलाटाइल तो समझते हैं ना? अगर कोई मेरे ऐसे वर्ड्स है जो टेक्निकल होता है और आपको नहीं समझ आती तो प्लीज मुझे रोकें। वोलाटाइल, जैसे पेट्रोल वोलाटाइल है, जैसे स्पिरिट वोलाटाइल है, उड़ जाता है, ये भी उड़ जाएगा। और इस वोलाटाइल मेमोरी का नाम है रनिंग कन्फिग। इस वोलाटाइल मेमोरी का नाम है रनिंग अंडरस्कोर कन्फिग। जो भी इसके अंदर है वो टेम्परेरी है। वो क्या है? टेम्परेरी, खत्म हो जाएगा। इट्स लाइक ए रैम विच इज वोलाटाइल। द नेक्स्ट वन इज नॉन वोलेटाइल, एनवी, उसको कहते हैं एनवी रैम, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। दैट मेमोरी इज कॉल्ड स्टार्टअप मेमोरी, स्टार्टअप कन्फिग। तो यहां पे बाबर साहब आपके सवाल का जवाब होगा कि whenever you do something, it will be going into this config, running config, and it is your responsibility as administrator that you should put from the running configuration into the, and it will never go directly into the startup config. It will, that like जैसे आप काम करते हैं, it go into the RAM and it never go to hard disk. That is you who put the data, whatever it is, from the RAM into the hard disk. And the third one is flash memory. It is always good कि आप जो कुछ भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से आपने स्टार्टअप में लाए, इट इज ऑलवेज गुड कि आप इसकी एक कॉपी फ्लैश में भी सेव करें। ना सिर्फ फ्लैश में सेव करें, ना सिर्फ, ये मैं नहीं कह रहा कि फ्लैश में ना करें, मैं कहता हूं कि ना सिर्फ फ्लैश में करें, बल्कि इट इज ऑलवेज गुड टू टेक ए बैकअप ऑफ दिस। जी जी, मैंने कहा कि जनाब अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि जनाब हमारे पास 3 किस्म के स्टोर्स हैं जिसमें हम अपनी चीजें, अपनी कॉन्फ़िगरेशंस, लाजमी तौर पे यहाँ पे हमने कोई अपनी वीडियोस तो नहीं रखनी, ये तो स्विच है। यहाँ पे हमने अपनी कोई तस्वीरें भी नहीं रखनी क्योंकि ये तो स्विच है। वो तो हम अपने अपने पर्सनल एंड डिवाइस पे रखते हैं। तो जो जो कॉन्फ़िगरेशन की कमांड आप, जैसे भी आपने नाम दिया, नाम बदल दिया,
तो that is presently available in the running config. config में जा रहा है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो कुछ भी अभी हम कर रहे हैं that is going into the running config. अब अपने रनिंग config से इसको सेव करना है, कॉपी करना है into the startup config. क्योंकि याद रखो एक चीज कि जब आप अपना पीसी स्विच ऑन करते हो, जैसे मैंने अभी रिबूट किया, तो लेडीज एंड जेंटलमैन दो काम होते हैं। iOS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को तो ये उठाता है फ्लैश से, ये फ्लैश में पड़ा हुआ है, और आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन की जो फाइल है, दैट इज अवेलेबल इन द स्टार्टअप कॉन्फ़िग, दैट इज अवेलेबल इन द स्टार्टअप config. So whenever you boot your switch, it takes the configuration from the here, and it takes the iOS from here. तो इन दो चीजों को लेके ही आपको आपका कंसोल वापस करता है। लेकिन अगर आपने स्टार्टअप को सेव ही कुछ नहीं किया, जब नहीं किया तो स्टार्टअप नहीं है, तो फिर ये जो डिफॉल्ट रनिंग कॉन्फ़िग है उसके साथ उठेगा, तो उठ तो जाएगा, लेकिन आपने तो उसमें 4 महीने 6 महीने काम किया हुआ है, everything gone, everything just gone. और वहां से कुछ जाएगा तो कंपनी आपको भी गॉन के बाद और कुछ नहीं करेगी। तो जनाब आप एक रनिंग प्रोडक्शन नेटवर्क्स में गलती की गुंजाइश को ना कभी वहां पे एक्सपेरिमेंट मत करें, महंगा पड़ेगा। इसलिए मेरे कुछ स्टूडेंट्स रहे हैं जो कि बीआरटी में जॉब करते हैं, तो कहते हैं जी हम यहाँ आके काम करना, although उनके पास भी एक नेटवर्क है, लेकिन वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि गलत काम हो गया तो अगले दिन कहा जाएगा खुदा हाफिज, साथ ही कहा जाएगा अकाउंट वालों से मिलने ताकि आज तक की तनख्वाह आपको दे दी जाए। तो वहां पे नहीं हो सकता, ये चीजें आप यहीं पे या सिमुलेशन में या एक्सपेरिमेंटल लैब में ये काम आप कर सकते हैं, और अपनी अगर क्यूरियोसिटी है आपके अंदर कि जी ये करूं तो क्या होगा, वो आप यहीं पे कर सकते हैं। बात समझ आ गई जी? तो आपने कहा कि जी ये तीनों चीजें हमें दिखा दो, तो कोई मसला नहीं, पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप अगर इसको लिख रहे हैं साथ, तो मुझे कह सकते हैं कि जी थोड़ा वेट कर लो, अदरवाइज आई वांट टू क्लियर इट सो दैट आई शुड गेट माय ओनली दैट कंसोल। कर रहा हूँ, डेफिनेटली कर रहा हूँ, इसलिए तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये मैंने क्लियर कर दिया, और अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मैं इसके पीसी में जाके, वही मैं वापस से यहाँ पे आ गया, और मैं आपको दिखाना ये चाहता हूं कि इस वक्त मैं किस मोड में हूँ, यूजर एग्जिट मोड में। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं एनेबल, देखिए मैंने सिर्फ ई एन लिखा और मैंने टैब प्रेस किया, एनेबल कंप्लीट हो गया, इससे मुझे कंफर्म हो गया कि आई एम एट द राइट प्लेस एंड दैट इज द राइट कमांड एज वेल। तो आई इंटर्ड हियर। अब मैं यहाँ पे कमांड दे रहा हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िग, देखिए मैंने सिर्फ RUN लिखा, टैब प्रेस किया, खुद ही रनिंग कॉन्फ़िग कंप्लीट हो गया, विच स्टेट्स दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग इज राइट। ठीक है, नहीं क्लियर हो रहा? अच्छा, लेकिन थोड़ा सा इस मोबाइल से दूर हो जाए क्लास के दौरान, इस तरह आप अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन शो रनिंग कॉन्फ़िग किया, तो देखिए ये रनिंग कॉन्फ़िग मेरे सामने आ गई, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि इसका होस्ट नेम बदल के switch_sw हो चुका है, switch_sw हो चुका है। अब इसका नाम स्विच नहीं रहा, क्योंकि मैंने एक ही काम इस गरीब पे अभी तक किया है, अल्दो की बाकी चीजें मुझे दिखा रहा है, कहता है मोर, इफ आई क्लिक हियर इट शोज मी ऑल द इंटरफेसेस। अभी बताया था ना कि स्विच में, अभी आपको मैंने फिजिकली बताया था कि 24 फास्ट इथरनेट और 2 गीगाबिट पोर्ट हैं। देख लो 1 से लेकर 13 तक नजर आ रहा है, फिर आगे देख लें 13 से आगे 24 तक नजर आ रहा है, 24 से आगे आपको गीगाबिट 2 पोर्ट नजर आ रही हैं। हम पढ़ेंगे कि VLAN क्या होते हैं, वेरी ब्रीफ हियर बट टू मच इन दी नेक्स्ट कोर्स, विच इज अबाउट दी स्विचिंग, राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल।
We'll be playing with this VLANs. ठीक है? Okay. Then we'll be playing with this. ये तो अभी आज ही प्ले करेंगे कंसोल, line console, VTY, virtual terminals, which are used for the remote login. VTY are used for the remote login. लेकिन किसी पे हमने काम नहीं किया हुआ, इसलिए सारी चीजें डिफॉल्ट सेटिंग्स पे, और इंटर करता हूं, खत्म हो गया, एंड हो गया। इसी तरह मैं करता हूं शो स्टार्टअप कन्फिग, स्टार्टअप डैश कन्फिग, स्टार्टअप डैश कन्फिग। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये किया तो आपको नजर आ गया एग्जैक्टली सेम। यही वजह थी शायद ये इसमें पहले से सेव है, वरना जब मैंने इसको रीबूट किया, रीलोड किया, इट नेवर कम अप विद द सेम समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी देयर। तो ये इसकी स्टार्टअप के इसमें पहले से मौजूद थी, अदरवाइज ये देता स्टार्टअप नॉट एग्जिस्टिंग, स्टार्टअप में कुछ है ही नहीं। तो इसलिए मैंने आपको कुछ देर पहले कहा मोर किया, देखने वही चीजें आपको नजर आ रही है। तो जो इसके स्टार्टअप में है, सॉरी जो इसके रनिंग कॉन्फ़िग में है, वही इसके स्टार्टअप में। अब कैसे इसमें हम डालेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक काम कर लेते हैं और फिर करते हैं ताकि डिफरेंस नजर आए। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी तरह आपने कहा कि फ्लैश दिखाओ, यहां से एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि शो कराओ फ्लैश। ये देख लें जी, फ्लैश, फ्लैश में दो फाइलें पड़ी हैं। ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है इमेज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, और इस बॉक्स का, लगता तो बॉक्स ही है, इस बॉक्स का सबसे कीमती चीज, इसका हार्डवेयर इतना कीमती नहीं है, इसका हार्डवेयर कंपनी का शायद अपना बना हुआ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है रैम कोई बनाता है, प्रोसेसर कोई बनाता है, मदरबोर्ड कोई बनाता है। जो सबसे बड़ी सिस्को की ताकत है वो इसका सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, iOS है। तो ये iOS यहां पड़ा हुआ है जी, ये आप खरीदते हैं असल में, इसका आप लाखों रुपए देते हैं। और साथ ये बड़े पड़ा हुआ है config-txt, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो आपको चाहिए कि जब रनिंग में डालो तो उसको स्टार्टअप में तो मस्ट डालो, फ्लैश में भी डाल दो कि गलती से जी, देयर इज समथिंग इन द चैट, लेट मी सी इट, कैन यू अपग्रेड iOS फाइल? सैयद मुजम्मिल हैदर, यस, इफ अवेलेबल, इफ आई हैव एन, मिसाल के तौर पे मेरा हार्डवेयर एक नई iOS को सपोर्ट करता है, जो कि सिस्को मुझे देता है, यानी मैं उसका लाइसेंस खरीद लिया, और सिस्को एक गारंटी करता है कि जी आपके हार्डवेयर के साथ, और अभी हम ये देखेंगे कुछ देर में ही कि मैं उसको बताऊंगा कि जी मेरे हार्डवेयर की ये स्पेसिफिकेशंस है। अगर वो कहे कि जी ये ले लो और ये नए इस हार्डवेयर के साथ कंपैटिबल है, यस आई कैन अपग्रेड इट, I can take even the backup of this operating system and I can restore it as, yes, why not? आगे चलते हैं जी, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो ये आपने देखा, अब मैं यही एक और चेंज करता हूं छोटी सी, और फिर मैं इसको सेव करता हूं ताकि आपको समझ भी आए। तो जेंटलमैन, अब आप देख रहे हैं कि मैं बड़े धड़ल्ले से कहूंगा, आम मैं एक मोड से दूसरे मोड, तीसरे मोड, इसका मतलब है कि जो मैं करना चाहूं, इवन मैं ये फ्लैश में से, अगर ये रियल हार्डवेयर है तो इवन मैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ा सकता हूं। डिलीट है ना, और क्या है? तो क्या मुझे इतनी ताकत होनी चाहिए? किसी को भी होनी चाहिए? नेवर। तो आपको चाहिए कि आप जगह जगह पे प्रोटेक्ट करें अपने आप को, क्योंकि एडमिन एक होता है, स्टाफ 50 होता है। कुछ काम आप अपने लिए रखेंगे कि भाई मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, बाकी काम जो लो प्रायोरिटी के हैं वो आप अपने टेक्नीशियंस को, सुपरवाइजर को असाइन कर सकते हैं। ऐसा ही है ना, होना भी ऐसा ही चाहिए। अब आपने देखा कि लीस्ट प्रिविलेज मोड में तो कुछ नहीं था, लेकिन प्रिविलेज मोड से मेरी ताकत बढ़ गई। चाहिए कि मुझे इस जगह पे रोका जाए,
कि अगर मेरे पास उसका क्रेडेंशियल्स हैं तो मैं अंदर आ जाऊं, क्रेडेंशियल्स नहीं है तो मुझे अब कभी भी अंदर नहीं आने देना चाहिए। ऐसा ही है, क्रेडेंशियल का मतलब यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर मेरे पास पासवर्ड नहीं है इसका मतलब मैं एक लो स्टेटस का एम्प्लॉई हूं, मैं उसके अंदर ना जा सकूं। तो जेंटलमैन, जैसे अभी आपने देखा कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज दी इनेबल। इनेबल पे रोको, इवन कंसोल पे रोको, इवन कंसोल पे रोको, कोई अंदर ही ना आ सके। कंसोल पे आने की कोशिश करे तो वहां भी उसको वार्निंग करो। क्यों वार्निंग करो? इसलिए, जैसे मैं एग्जांपल ये देता हूं कि अगर एक स्ट्रीट है और बाहर उसके अंदर लिखा हुआ है कि जनाब ये रास्ता बंद है या नहीं है बंद, लेकिन ममनू है, और आप फिर भी उस गली में स्ट्रीट में इंटर होते हैं, तो वहां के लोग आपके साथ क्या करेंगे? वो तो आपको पता है फिर कि वो क्या करेंगे। अगर वो जो वो करेंगे वो लीगली प्रोटेक्टेड भी होगा, क्योंकि वो कहेंगे तुम्हें बाहर नजर नहीं आता, हमने लिखा हुआ है कि जी ये रास्ता ममनू है। जैसे मिसाल के तौर पे आप अगर किसी पुलिस या मिलिट्री के इंस्टॉलेशन के अंदर जाने की करें, कहीं मैं पाकिस्तानी हूं, मैं जाता हूं अंदर, और वो उन्होंने बाहर लिखा हुआ है कि जी अंदर आने की इजाजत नहीं है, कैमरे की आंख आपको देख रही है, इसका मतलब है कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, और वो जो आपके साथ करेंगे फिर आप 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो यहां पर भी आपको इस किस्म के बैनर्स लगाने हैं कि कोई ये ना कर सके कि मुझे क्या पता था, मैं तो बस ऐसे ही यहां से गुजर रहा था, मैंने कहा चलो ये रास्ता है अंदर चले जाते हैं। नो, क्योंकि जिस तरह क्राइम्स रियल वर्ल्ड में होते हैं उसी तरह उससे ज्यादा क्राइम जो है वो साइबर वर्ल्ड में होते हैं। तो आपने अपने बैनर्स के जरिए उसको बताना है कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, ताकि वो पढ़ने के बाद भी करता है अगर, तो आप उसको कल साइबर क्राइम के सामने ले जा सकें कि जनाब आपको वार्न किया गया, आपने फिर भी नहीं समझा। इसका मतलब है कि आप दीवाने नहीं हैं, आप बड़े समझदार हैं, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करो। क्लियर है जी? इस चीज पे काम करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके, तो जनाब हमने कहा कि हमने फ्लैश भी देख लिया। अब मैं सबसे पहले इसके अनेबल के ऊपर, यानी कि प्रिविलेज मोड पे रुकावट लगाता हूं। कैसे लगाता हूं? मैं जाऊंगा अगेन कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में ये मैं चला गया, चला गया ना जी। और यहां पे मैं कमांड देता हूं एनेबल, एनेबल पासवर्ड, एनेबल पासवर्ड, और लेट करें केस सेंसिटिव है। फिर हमने ये भी लगा इस पे सीखना है, पासवर्ड इतना नरम नहीं होना चाहिए कि अगला हमारा यूजर जो है 4 कैरेक्टर का यू रख ले, नहीं, वो हम बाद में सीखेंगे। मैं अभी इस समझाने के लिए सिर्फ लिख देता हूं सिस्को, पासवर्ड क्या लगा दिया? सिस्को, इंटर कर देता हूं जी, और यहां से एग्जिट करता हूं। एग्जिट कर गया, यहां से भी एग्जिट कर जाता हूं। तो ये देखें जी मैं किस मोड में हूं अब? मैं यूजर एग्जिट मोड में हूं, मैं यूजर एग्जिट मोड में हूं लेडीज एंड जेंटलमैन। ये देख लीजिए मैं यूजर एग्जिट मोड में हूं। यहां पे मैं उसी मोहब्बत से लिखता हूं एनेबल जो मैं पहले लिखता था। क्या लिखा? एनेबल, और इंटर करता हूं। नहीं जाने दे रहा मुझे अब, नहीं जाने दे रहा मुझे अब। गलत पासवर्ड देता हूं, अपना नाम लिख देता हूं, हो सकता है मेरे नाम की लाज रख ले। नहीं मान रहा, फिर भी कुछ और भी लिख रहा हूं, फिर भी नहीं मान रहा, फिर भी लिख रहा हूं, फिर भी नहीं मान रहा, कहता है बैड सीक्रेट। इधर ही रहो, इधर ही, बस आगे जाने की आपकी आपकी लिमिट तो खत्म हो गई है। लेकिन अगर मैं दोबारा अनेबल लिखूं, अगर मैं दोबारा अनेबल लिखूं और इंटर करूं, फिर पासवर्ड मांगता है।
अब मैं सही दे देता हूँ CISCO सिस्को, इंटर किया तो मैं अंदर आ गया, क्योंकि अब सिस्टम को पता चल रहा है कि एक क्रेडिबल यूजर, ऑथेंटिकेटेड यूजर ये कर रहा है। कुछ बात समझ आ रही? लेडीज एंड जेंटलमैन, अब अगर मैं यहां पे लिखूं शो रनिंग, जैसे मैंने पहले कहा शो रनिंग कन्फिग, तो चेक करते हैं कि कहीं आया है? हाँ जी आ गया है। क्या अनेबल पे एक पासवर्ड है जो कि सिस्को है, नजर आ रहा है ना? अच्छा जी, मैं यहां से निकल जाता हूँ। दैट द रीजन वी प्रोवाइड यू दी रिकॉर्डिंग। ओके, तो जनाब हम बात कर रहे थे अबाउट दी, एक मिनट जी, एक मिनट, ये मेरा ये है जी। अच्छा जनाब, तो हम इस वक्त, आपको नजर आ रहा है कि हम वापस इसको उसके पर आ गए। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, शो रनिंग कन्फिग, शो रनिंग कन्फिग। तो देख लें कि आप इसका रनिंग कन्फिग के अंदर ये इनेबल के ऊपर नजर आ रहा है कि पासवर्ड सिस्को है, नजर आ रहा है ना? अब जेंटलमैन, मैं यहां पे कमांड देता हूं शो स्टार्टअप, शो स्टार्टअप लिख दिया मैंने, शो स्टार्टअप कन्फिग। आई इंटर इट, बट देर इज नो पासवर्ड हियर, देर इज नो पासवर्ड हियर, कोई पासवर्ड यहां नहीं है। और अब वो मेरी बात जो कि इनिशियली बाबर साहब के सवाल के जवाब में था, अब मैं इसको करता हूं यहां से रीलोड, क्योंकि इसके उसमें नहीं सेफ। रीलोड किया, कहता है कर दूं, मैं कहता हूं जी 20 दफा कर दो, मेरे कोई तकलीफ नहीं। रीबूट, जैसे आप अपने कंप्यूटर कहते हैं, जैसे आप अपने कंप्यूटर को कहते हैं ये पावर, और पावर को कहते हो यहाँ पे रीस्टार्ट, इट इज कॉल्ड रीलोड। ये तो पालतू ये है। रीलोड कहता है कर दूं, मैंने कहा जी बिल्कुल कर दो। सॉरी, मैंने कोई लिखा नहीं, कहता है यस कर दो। ये उसने ये कर दिया, कहता है मैं कंफर्म। ये यहाँ देखिए जी से अब होके रीबूट हो रहा है। मैंने बुलाया तो आगे आगे भागने लगी, तो फिर एक जगह रुक गई, तो मैंने पकड़। ओके, एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, स्पेशली फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्योंकि बाकी आप लोग उनको डिस्टर्ब करेंगे। अपने माइक को अगर म्यूट रखें तो इट विल बी नाइस, और माइक को उस वक्त ऑन करें जब आपको क्वेश्चन करना चाहे, और फिर उसको वापस कर दें, क्योंकि ये रिकॉर्ड होता है। तो ये ना हो कि कोई चीज रिकॉर्ड हो जाए और हम उसको फिर इतना एडिटिंग के दौरान टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि कोशिश होती है कि हम उसको एक आध दिन के अंदर ही स्टूडेंट तक दे दें। तो इस किस्म की एडिटिंग इस लेवल पे की जाए तो फिर उस पर बड़ा टाइम लगता है, और फिर आप लोगों को ये होगा कि जी एक इस वीक हुआ है और अगले वीक उसके लेक्चर मिल रहे हैं, तो इट विल बी लेट। इसलिए काइंडली छोटी सी चीज का ख्याल रखें। ओके, अब देखें जी, रिटर्न कहता है प्रेस करो, मैंने प्रेस कर दिया। अब एनेबल लिखता हूं, देखें जी बाबर साहब कुछ करता है कि नहीं करता। एनेबल लिखा, इंटर किया, क्या बात है, खुद क्यों सेव कर रहा है? नहीं करता, कभी भी नहीं करता। एनी हाउ, इसको अगर हम सिस्को दे दें तो ये यहाँ पे चला गया। मैं चेक करता हूँ इसकी शो रनिंग, रनिंग कन्फिग। तो रनिंग कन्फिग में इसने डाल दिया, इसके सॉफ्ट एग्जैक्ट नहीं कर रहे, एग्जैक्ट किया मतलब नहीं नहीं नहीं, रनिंग कर दिया। जब आपको ये रिमोट, क्वेश्चन ये है कि क्या अगर मिसाल के तौर पर मैंने कमांड दी, तो क्या मैं उसे एग्जिट करने के लिए कुछ वो करूंगा? एग्जिट उस वक्त खुद ब खुद हो गया जेंटलमैन, उस वक्त खुद ब खुद हो गया, उस वक्त खुद ब खुद हो गया जब आपने इसको ये आपको वापस प्राउंड मिल गया। लिनक्स का और आईओएस का ये दोस्ती है, दोस्ती ये है कि दोनों एक ही तरह बिहेव करते हैं, कि जब आपको ये वापस प्रॉम्प्ट दे दे, इसका मतलब है आपका पुराना काम जो आपने कहा वो हो गया।
आपने सेव नहीं किया तो सेव नहीं हुआ। ठीक है। अब सेव करने का क्या तरीका है वो भी मैं क्लियर कर दूं। मिसाल के तौर पे जेंटलमैन, मैं यहां पे इसको कहता हूं कॉपी, कॉपी, जी बिल्कुल, कॉपी रनिंग कन्फिग, और फिर डेस्टिनेशन का नाम स्टार्टअप कन्फिग। क्या कमांड है? कॉपी रनिंग कन्फिग स्टार्टअप कन्फिग। और मैंने इंटर किया। ये मुझे पूछता है इसी नाम से कर दूं, मैंने कहा जी कर दो, ये हो गया। दे सकते हैं, लेकिन जब ये उठ के आएगा, लेकिन स्टार्टअप को तो कभी भी नाम चेंज ना करें, क्योंकि वो पढ़ता ही स्टार्टअप से है। अगर आपने नाम चेंज कर दिया इसका, तो वो कहीं और जगह सेव करेगा, स्टार्टअप में नहीं हुआ। नाम मत बदलें, स्टार्टअप को स्टार्टअप रहने दें। ये बाय डिफॉल्ट नेम्स हैं स्टोर्स के। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी आपने अपनी ड्राइव में रखा है सी है, ये डी है, आप उसको हमेशा बदलते उसको एक और नाम दे जाओ। ये कोई फोल्डर है, आप उस फोल्डर को, क्योंकि प्रॉब्ली जब हम लिनक्स में स्पेशली काम करते हैं, तो वहां पे एक स्पेशल फाइल है, उनके स्पेशल मीनिंग्स हैं। आप उस वहां पे उसको फोल्डर नहीं कहते, डायरेक्टरी कहते हैं। तो उस डायरेक्टरी से अगर आप किसी और जगह पे या डायरेक्टरी का नाम ही बदल दो, सिस्टम इज गॉन। नहीं, जो मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनको आप नहीं छेड़ सकते। जैसे मैंने आपको कहा मिसाल तो पे, लिनक्स में एक फाइल है, एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है PASSWD, उसमें पासवर्ड है। आपने उस PASSWD 1 कर दिया, रूट कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर कर दिया तो मैंने पासवर्ड कहाँ से पढ़ेगा, क्योंकि वो पढ़ने के लिए जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि इस फाइल का नाम इस जगह भी है, /etc में है। आप उसको /etc उठा के कहीं और शिफ्ट मूव कर दो, नहीं। कुछ चीजों की इजाजत है, स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे नहीं होती। अच्छा जी, इसी तरह अगर आप सेव करना चाहें, अभी मैं आपको पहले शो फ्लैश बता देता हूं कि उसमें नहीं है। अब मैं करता हूं, देखें, कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन या रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, दोनों को आप कॉपी कर सकते हैं। अगर दोनों सेम है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां दे दें फ्लैश। क्या दे दें? इंटर कर दें। कहते हैं इसी नाम से कर दूं, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के नाम से, आपकी मर्जी, यस और नो। यस कहता है हो गया, ओके कह दिया तो मतलब हो गया। मैं ये बता रहा था कि लिनक्स में और आईओएस में ये बात मुश्तरक है कि लिनक्स भी जब आप अच्छा काम करते हैं तो शाबाश नहीं देता, जब आप अच्छा काम करते हैं तो शाबाश नहीं देता। गलत काम कहते हैं तो एकदम कहता है रुक जाओ। तो यहां पर भी जब आप सक्सेसफुली, आपको वापस प्रॉम्प्ट मिल जाता है, तो समझ जाए कि जी आई डिड समथिंग गुड। और कुछ गलत दिया तो वो ऑन करेगा, नहीं करने देगा। क्लियर हो मेरी बात जी? अब अगर आप यहां पे चेक करें, शो शो फ्लैश, तो देखिए इसके अंदर ये रनिंग कॉन्फ़िग भी आपकी 1106 बाइट्स की फाइल स्टोर हो गई। बेहतर है कि रनिंग की बजाय स्टार्टअप को सेव किया करें। ठीक है, ओके, ये भी हो गया जी, अच्छी बात है कि आपने सीख लिया कि रनिंग। यही मैंने अभी कहा है, अभी मैंने यही लफ्ज आपसे एक सवाल से पहले यही कहा कि बेहतर था कि स्टार्टअप को यहां सेव करो, क्योंकि दोनों सेम है, लेकिन बेहतर है कि स्टार्टअप को करो, क्योंकि यहाँ पे उसका नाम स्टार्टअप कॉन्फ़िग आएगा। तो आपको पता होगा कि मैं इसको वापस अब लेकर आऊंगा, कभी खुदा ना खास्ता आपकी स्टार्टअप करप्ट हो गई या गलती से डिलीट हो गई, तो वापस लाने का रास्ता आपके पास होगा। क्लियर होगी मेरी बच्ची? अगर वो एक लाइन में आता है कमांड, तो जैसे कि लिनक्स में भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप जानबूझ के उसको 6 लाइनों पे लेकर जाएं कि एक पे लिखे मिसाल तो पे कॉपी, इंटर मारे, तो वो ये समझे कि कमांड खत्म हो गई है। लेकिन अगर कमांड खत्म नहीं हुई और आप चल रहे हो, तो दूसरी लाइन पे लाते हो तो वो खुद लेकर आया है। आपने, जैसे प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है तो \n इसको कहते हैं, तो जब आप इंटर मार दिए तो \n आ गया है, तो वो नहीं डालना।
जैसे मैंने आपसे कहा कि जेंटलमैन, अगर आप एक कमांड लिखते हैं और वो कमांड खत्म नहीं हुआ, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे कमांड है मेरी, जैसे अभी आपने कहा कॉपी, कॉपी रनिंग चले स्टार्टअप कन्फिग, और अगर कोई जगह बतानी है, मैंने नहीं बताई, कमांड पूरी नहीं है ना, मैंने इंटर कर दिया, वो कहते हैं इनकम्प्लीट कमांड। नजर आ रहा है? क्योंकि मैंने बैकस्लैश एन डाल दिया है, यानी कि ऑर्डर दे दिया कंप्लीट करो, वो कहते हैं तुमने तो चीज ही पूरी नहीं दी, पोस्ट तो बता दिया, डेस्टिनेशन तो बता ही नहीं है। अब अगर मैं इसको दोबारा ये कहूं और साथ ये भी बता दूं कि जनाब जगह, अगर ये कमांड सिर्फ एफ से इसको कुछ पता चलता है और कोई नहीं है, मिसाल के तौर पे भी चेक कर लेता हूं, नहीं है, एफ से इसको कुछ नहीं पता चला, मैं इंटर करता हूं, फिर भी ये कहता है कि एम्बिगुअस कमांड, कहते हैं मैं एफ से कुछ नहीं समझा, किधर रखूं, तो ये इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर आप एक कमांड लिख रही हैं और वो कमांड 3 लाइनों पे है, डजेंट मैटर, क्योंकि आपने बैक स्लैश एन तो नहीं डाला, आपने उसको नहीं बताया कि मैंने कमांड को पूरा कर दिया है। अब अगर मैं इसको मिसाल के तौर पे इसको फ्लैश पूरा कर दूं और अब इंटर करूं, तो ये कहता है हाँ इसी नाम से करूं, मैं कहता हूं हाँ जी बिल्कुल इसी नाम से करो, ये इसने कर दिया। अब अगर इसको मैं आपको दिखाना चाहूं तो शो फ्लैश, and it shows me that the startup configuration of exactly 111 and 6 bytes is there. जी दैट इज द क्वेश्चन, इसका मैं अभी आंसर, व्हाट्स योर नेम? इजाज ने क्वेश्चन किया कि एक अल्दो अल्दो कि हर एक को आप प्रिविलेज मोड में आने की इजाजत, क्योंकि ये सिर्फ ये जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है या स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है, इसको आप, या फ्लैश है, इसको आप शो करवा सकते हो व्हेन यू आर इन दी प्रिविलेज मोड में। तो इसका मतलब है कि हर एक को प्रिविलेज मोड में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि बिल्कुल जेंटलमैन, अच्छा क्वेश्चन आपने किया। क्वेश्चन इनका ये है कि जनाब ठीक है पासवर्ड लगाया, लेकिन यहाँ पे अगर लेट करें कि मैंने इतने यूजर के पासवर्ड भी यहाँ बना दिए हैं, तो एडमिन तो सारे के देख लेगा, या वो बंदा जिसको प्रिविलेज मोड में जाने की इजाजत है वो सबके यूजर नेम और पासवर्ड देख लेगा, वो फिर उन्हीं को यूज करेगा, तो फिर तो सिक्योरिटी ब्रीच्ड है, फिर तो सिक्योरिटी ब्रीच्ड है। तो इसका जवाब भी दे देते हैं। और लेकिन ये बताता चलूं, पिछली 2 क्लासों से मैंने थ्योरी को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन थ्योरी के बगैर टेक्नीशियन तो बन सकता है, इंजीनियर या साइंटिस्ट नहीं बन सकता। तो साथ साथ मैं उसको भी लेके चलूंगा। आज मेरा प्लान तो ये था कि मैं थ्योरी से आगाज करूंगा, लेकिन फिर किसी का क्वेश्चन हुआ तो आई स्टार्टेड विद दिस सेम, एंड मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव टू वर्क ऑन बोथ दिस कोर्स। मुझे एक स्टूडेंट ने उस पे यूट्यूब पे मैसेज दिया कि मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से बीएस कंप्यूटर साइंस में कर रहा हूँ, सीएस में कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उस लेक्चर का कुछ भी समझ नहीं आती, और आपके लेक्चर अगर मैं देख लूं तो उसको मैं क्लासें लेना छोड़ दूं। मैंने कहा नहीं, मैं तो आपको ये नहीं कह सकता कि आप उसकी क्लासें छोड़ दें, आपकी मर्जी है, लेकिन आप दोनों को कर लें तो इट्स मच बेटर। तो कहने का मकसद ये है कि थ्योरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि उससे भी ज्यादा, क्योंकि वो आपका नॉलेज बनाती है, और नॉलेज से आप अपनी फिर स्किल को पॉलिश करते हैं। तो ये कोई आप ना समझे कि जी मैं हाँ आगे बढ़ता जाऊंगा, थ्योरी कम होती जाएगी, प्रैक्टिकल बढ़ता जाएगा, लेकिन यू आर दी नंबर 1 कोर्स विच नीड्स बोथ थ्योरी एज वेल एज क्लियर। गुड जी। अब इनके सवाल का जवाब कि पासवर्ड तो नजर आ गया, यही कहा ना आपने इजाज साहब, एक कमांड देता हूं अगर इजाजत हो तो। ओके, मैं जाता हूं जी कॉन्फ़िगर टर्मिनल में वापस। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में मैं ऑनलाइन स्टूडेंट को बताना ये चाहूं कि इजाज साहब का क्वेश्चन ये है कि जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है या स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है,
जहां जहां ये कॉन्फ़िगरेशन पड़ी है वहां से तो ये सारे यूजर नेम पासवर्ड हम पढ़ सकते हैं। तो अगर किसी बंदे के मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां 50 उसके एम्प्लॉइज हैं, उनके लाजमी तौर पे यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड होंगे। तो एडमिन साहब तो, या डिप्टी एडमिन साहब या असिस्टेंट एडमिन साहब जो हैं, वो तो सबको पढ़ गए, और वो जिसके पासवर्ड से मर्जी है एंटर करें, और सारे गुनाह जो है उसके जिम्मे जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें लॉग होती हैं। यानी मेरे एक बॉस थे, तो काम मैंने उन्होंने कहा कि ये कर दूं, कहता है कर दो, लेकिन इस तरह बैठ के करो जैसे थाने में बैठ के कर रहे हो। क्या मतलब है इसका लारे? ये काम कर रहे हो करो, लेकिन ऐसा समझ के करो जैसे थाने में बैठ के कर रहे हो। इसका मतलब है कि आपको किसी वक्त भी पकड़ा जा सकता है, पुलिस वाला आपको देख रहा है कि आप गलत काम कर रहे हो। तो यहां पर भी ये समझो कि पुलिस वाला आपको देख रहा है। तो वो कहां पे जाता है? लॉग्स में स्टोर होता है। लॉग से निकाला जा सकता है कि जी ये काम किसने किया है, किस वक्त किया है, ताकि वो डिनाई ना कर सके, वो कोई नहीं कर सकता। तो इनका अच्छा क्वेश्चन है, जवाब लें जी। यहां पे मैं लिखता हूं सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। क्या कमांड मैंने लिखी? सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, और इंटर कर देता हूं जी, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। अब यहां पे बाबर साहब मैं क्या करता हूं, वापस यहां से एग्जिट करता हूं और कहता हूं शो रनिंग कन्फिग। पासवर्ड है, अनेबल पे पासवर्ड है, क्या है? 0822 ब्ला 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 A16। और ये अब इंटर भी करो तो काम नहीं करेगा। अब सारे पासवर्ड जो इस मशीन पे बनेंगे, ऑल विल बी इनक्रिप्टेड। देन यू हैव टू ब्रेक द पासवर्ड। Everything can't be done in one class. By using this table, I can break it. क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि अगर पासवर्ड भूल गया, तो यहां तो फॉरगेट पासवर्ड का भी कमांड नहीं है, तो देन यू हैव टू क्रैक द पासवर्ड। नथिंग, everything will be same, only you will be going there and crack the password, change the password, bas. But not simple, that is not a simple। पिछले को 3 महीने से मेरे पास एक राउटर अंदर पड़ा हुआ है जिसका पासवर्ड जो है वो नहीं पता, मुझे नहीं टाइम मिलता कि मैं उसको क्रैक करूं। ठीक है जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपको अब क्या नजर आ रहे हैं? सारा पासवर्ड जितने भी हैं वो आपको। एक और चीज भी क्लास को खत्म करने से पहले पहले बात करूं, ये है इनक्रिप्शन। एक चीज होती है हैशिंग, और ये दोनों डिफरेंट है। हैशिंग और इंक्रिप्शन डिफरेंट चीजें हैं। कोई है मुझे जो ऑनलाइन में बताए कि इनमें डिफरेंस क्या होता है? although I can understand that is not part of the CCNA, लेकिन as far as the knowledge is concerned, there is no restrictions. Is there anyone from the online students who can tell me what the difference between the two? One is encryption and number two, hashing. So what is hashing then? Okay, क्या? ओके, तो फिजिकल पे तो कुछ लोग बोले, ऑनलाइन से दो में ये आंसर नजर आ रहे हैं। और मोहसिन कह रहा है हैशिंग इज इरिवर्सिबल। या इट्स अ गुड आंसर, हैशिंग इज इरिवर्सिबल। अरीज, इंफॉर्मेशन को डेटा में कन्वर्ट करना इज इंक्रिप्शन। नो नो अरीज, इंफॉर्मेशन को डेटा में कन्वर्ट करना इज नॉट इंक्रिप्शन।
Azan. Both are data security techniques that scramble data but have different purpose. Purpose is the same, but answer is not the of what I was expecting from you, Azan. So let me explain. Ladies and gentlemen, if I open for me this whiteboard, the difference between the encryption, एक अच्छा जवाब जो है वो मोहसन ने दिया, मोहसन सज्जाद ने, उसका आंसर लगा कि ठीक है. क्वेश्चन ये है कि जनाब, when you have something like a doc file, you have something which we call as the plain text, which is readable. And whenever you give it to a box, and that box is a cipher box, यानी इनक्रिप्टर है, साइफर है. पाकिस्तान की पिछले 2-2.5 साल में इसका बड़ा चर्चा रहा. तो साइफर को जब देते हो तो इट कन्वर्ट्स इनटू दिस प्लेन टेक्स्ट इनटू ए साइफर टेक्स्ट, विच इज सीक्रेट टेक्स्ट आप कह सकते हैं. And that phenomena is called encryption. Encryption. And here in the cipher, you use different algorithm. Like for example, AES, for example, DES, DEC or DES, TDES, वगैरह वगैरह. These are and the good point is that you can easily convert by using the same algorithm to get the plain text back. इसका मतलब यही बात मोहसन ने की कि जनाब it is reversible. You can get the plain text back. बात समझ आ रही कि you encrypt and that you getting this back is called decryption. So that is the difference, that you are doing encryption and then decryption. What is the hashing? Basically, here you use some mathematical techniques, जिसमें जा तो सकते हो, वापसी नहीं है. इसलिए उसने कहा कि रिवर्स इज नॉट पॉसिबल. मोहसन ने कहा कि रिवर्स नहीं मुमकिन. मिसाल के तौर पे आई हैव द सेम प्लेन टेक्स्ट, जिसे मैंने कहा, बट इफ आई hash it by using, for example, I using SHA-1 or I using SHA-2 or I using MD5 or any other, it will convert it into a text, into a, may I call it a text or something which is called a hash value, and इस hash value से वापस ये लाना नहीं possible. इसलिए इट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर. पासवर्ड्स को हम हमेशा इसी से सेव करके अपनी मशीन के अंदर रखना पसंद करते हैं. आप कहेंगे कि जनाब जब ये रिवर्सिबल नहीं है तो फिर इसको कंपेयर कैसे करेंगे? हाउ यू कैन ब्रिंग इट बैक इनटू द प्लेन टेक्स्ट? वेरी डिफिकल्ट, नियर टू इम्पॉसिबल. Now, ladies and gentlemen, then what technique we use? Basically, मिसाल के तौर पे it was my password, which was Cisco, for example. I gave it and it produces a hash value. Technically I can say that near to impossible that the hash value of this Cisco, if I give it to some algo or even the same algo, and I can get this Cisco back. No. मेरी बात समझ आ रही? देन वो हम करते क्या है? हम करते ही हैं कि अगर मैंने सही सिस्को दिया दोबारा, तो मैं उस SHA-1 या SHA-2 या MD5 से दोबारा इसको इनक्रिप्ट, ये मुझे दुनिया को पता है कि ये वाला एल्गो इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला मैथमेटिकल टूल इस्तेमाल हो रहा है. अगर और ये हैश वैल्यू देगा, मैं इन दो हैश वैल्यूज को कंपेयर करता हूं, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट में लाना वापस मुमकिन नहीं है. अगर ये दोनों सेम है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि इनका 1-to-1 रिलेशन है, इस सिस्को का इस हैश वैल्यू से 1-to-1 रिलेशन है, तो अगर ये दोनों सेम है तो फिर ये दोनों भी सेम
इसका मतलब कि उसने करेक्ट इनपुट दिया है। ये नहीं कर सकता कि डिनोट करके दोनों को मैं कंपेयर करूं। दैट इज द डिफरेंस। क्या ख्याल है मेरे ख्याल से अजान था। अजान, इज इट क्लियर नाउ? नॉट क्लियर? नॉट कन्विंस? यस सर, ओके। ये तो रीड करवाया कि आपने दिया, ये तो मैंने अभी बताया कि आपने इंटर किया अपना कोई यूजर ने, सिस्टम ने उसको किसी एक एल्गोरिथम, एक मैथमेटिकल टूल के जरिए उसको हैश वैल्यू में ले गया। वापसी निश्ता, वापसी नहीं है। तो अब दूसरा बंदा अगर उसको ये वाकई प्रॉपर पासवर्ड देगा तो ये सिस्टम उसका भी वैल्यू को हैश में ले जाएगा और दोनों हैशेस को कंपेयर करेगा, क्योंकि इनका रिलेशन 1 to 1 है। तो अगर हैशेस सेम आ गए तो इसका मतलब पीछे ये दोनों भी सेम है, इसका मतलब आपने ठीक पासवर्ड दिया है। और अगर आपने यहाँ पे गलती से कैपिटल सी लिख दिया, अब ये वो चीज नहीं रहा, ये हैश वैल्यू डिफरेंट आएगी, कंपेयर होगा नहीं, आज इक्वल, गो आउट, यू आर नॉट अलाउड। क्लियर? बात नहीं समझ? इसमें तो कोई, आपने सिस्को दिया, उसको नहीं पता कि सिस्को है कि नहीं है। आपने सिस्को दिया अपना पासवर्ड, उसने हैश में जाके सेव कर दिया, बस उसको ये पता है। आपने गलत दिया तो गलती आपकी है, उसकी नहीं है। देन आप दोबारा उसको कैपिटल सी से दे रहे हो तो गलती फिर आपकी है। तो फिर वो उसके पास तो कोई तरीका नहीं है कि वो आपको कहे नहीं जी, आपको ये कहेगा कि पासवर्ड गलत है, बस। नहीं, अगर वो आपकी गलती को ठीक करने लगे तो इट विल बिकम ए वल्नरेबिलिटी। ये सिस्टम की अपनी एक लूप होल होगी कि वो लोग और किसी को भी ठीक करके दे देगी कि दावा वाला। नो, ठीक है जी। आखिरी काम जी, आखिरी काम आज का। उम्मीद है कि आप प्रैक्टिकल से थके नहीं होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन जी, हाँ, नहीं आ रहा था जब मैंने शो रनिंग किया। तो गलत आपने आपने अभी 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 पहले ये देख लें, फिर हम आखिर में इसको देखिए। मेरा पासवर्ड वो कह रहा है कि कोई एनेबल में पासवर्ड है, लेकिन हम मुझे पता है कि सिस्को है, आपको पता है कि सिस्को के आपके सामने हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई पासवर्ड दिखाई नहीं दे रहा। आपने क्लास दिया होगा, कुछ और दिया होगा। एनीहाउ, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आखिरी चीज, एक चीज और दोबारा मैं करता हूं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब इसका, इस कमांड का फायदा क्या था? सर्वर्स पासवर्ड इंक्रिप्शन का। जितनी भी पासवर्ड अब मैं बनाऊंगा, कोई भी प्लेन टेक्स्ट में इस फाइल के अंदर नहीं जाएगा। आज मैंने ये कमांड दे दी, साल के बाद भी कोई पासवर्ड दूंगा वो एनक्रिप्टेड ही आएगा। अब किसका मतलब है कि एडमिन भी नहीं देख सकता, एडमिन भी नहीं देख सकता। तो योर सिस्टम इज प्रोटेक्टेड नाउ जाज। नेक्स्ट, द लास्ट थिंग फॉर टुडे, again I am doing configure terminal, and now I give the command again, enable पासवर्ड आता है ना। अब मैं कहता हूं enable सीक्रेट, और अब मैं एक क्लास दे देता हूं, वो सिस्को था, अब क्लास दे देता हूं, एक दूसरा पासवर्ड इंटर कर देता हूं। जेंटल, कर दिया, एक और पासवर्ड लगा दिया जो कि पासवर्ड नहीं है, सीक्रेट है। इसका मतलब कि मैं उसको कह रहा हूं कि उसको हैश करके वहां पे रखो, उसको हैश करके उधर रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपने इस बात को मान लिया तो फिर अब मैं यहां से एग्जिट करके एक दफा फिर शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करवाता हूं, और देख लो कि और पासवर्ड लग गया अनेबल के ऊपर, और वो पासवर्ड क्लास मैंने रखा था, लेकिन यहां तो कुछ और ही आ रहा है, ZECIL ब्ला 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 ब्ला, कांट बी रिवर्स्ड। अच्छा वर्ड मोशन ने कहा था, कांट, इट इज इरिवर्सिबल। यानी अगर मैं ये दूं, किसी भी सूरत में दोबारा क्लास नहीं हासिल कर सकता।
मेरी बात समझ आ रही? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वो एक और चीज भी आपको समझ आ रही है, आ जानी चाहिए। अगर मैं यहां से एग्जिट करूं और दोबारा लिखूं एनेबल, इंटर करूं, तो पासवर्ड मांग रहा है। यहां पे दो पासवर्ड हैं, एक सिस्को, एक क्लास। सिस्को देता हूं, नहीं लेगा। सिस्को दिया नहीं लेता, कहता है कमजोर पासवर्ड। जब ताकतवर पासवर्ड है तो कमजोर क्यों दूं? सिस्को इज नो मोर इफेक्टिव। दोबारा सिस्को देता हूं, CISCO, नहीं मानता। लेकिन अगर क्लास दे दूं तो मान गया, क्लास दिया तो मान गया। तो दैट इज द सेफेस्ट वे कि आप इंस्टेड ऑफ पासवर्ड किसी का लिए बनाएं, चाहे यूजर के लिए बनाएं, चाहे किसी चीज के लिए बनाएं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पासवर्ड यूज द सीक्रेट। अब आपके सवाल का पूरा जवाब मिल गया जी। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम दी ऑनलाइन स्टूडेंट? पहले ऑनलाइन स्टूडेंट आता हूं जी, फिजिकल स्टूडेंट के पास। वी हैव इशफाक महमूद, अरीज, बाबर, कायनात, एनीवन? साजिद साहब कहते हैं नो क्वेश्चन, दैट्स गुड। ऑल क्लियर मोहसिन, लेकिन ट्राई टू बी, आर इन द हॉस्टल मोहसिन? तो कोशिश करें कि यहाँ पे आए। हाउ इज कायनात? लेकिन मैं पहली दफा मैंने देखा कि कायनात रूबी, मैं इसको हमेशा रूबी पढ़ता रहा, ये मेरी स्टूडेंट रही हुई है। क्यों कायनात? ओके, मुजम्मिल यस की भी सर, कोई? अभी मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुई हूँ। हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे हमेशा मैं समझता था कि कायनात रूबी है। इट्स नॉट रूबी, इट इज रोबी। RO, RU नहीं है। एनी तो ऑल गुड जी, ऑल ओके नाउ। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिकल स्टूडेंट्स? ओके, आखिरी सवाल इनकी तरफ से आया। आप यहां से कोई क्वेश्चन? यहां से कोई क्वेश्चन? ओके जनाब, हम जो भी चीज सेव करते हैं, मैंने अभी बताया कि 3 स्टोर्स हैं। इसका मतलब है कि स्टोर कह ले डायरेक्टरीज हैं। उन डायरेक्टरीज में ये जगह चीज जाके स्टोर हो रही है। तो बेसिकली ये एक एक फाइल ही है जो कि रनिंग कॉन्फ़िग के नाम से। हाँ, आप अपनी चीजें फ्लैश में, फ्लैश इज लाइक योर हार्ड डिस्क, क्या आप वहां कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं और वहां पे अपनी चीजें सेव करें, यू कैन डू इट। लेकिन स्टार्टअप और रनिंग जो है, दीज आर जस्ट द फाइल्स, दे आर नॉट द डायरेक्टरीज, दे आर नॉट द सम पार्टीशन। नो जी। यहां से कोई क्वेश्चन? आपके सवाल का जवाब, किसने कहा था कि इसको हटाऊं कैसे? द सिंपल आंसर, बहुत ही आसान आंसर जनाब। जब भी सिस्को पे कोई काम करना हो, उसको उल्टा करना चाहो, उसके पीछे नो लगा दो। मिसाल के तौर पे भी आपने कहा मैं यही काम कर देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पे आई गो बैक टू दी कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इसको कहता हूं नो एनेबल, नो एनेबल सीक्रेट, नो एनेबल सीक्रेट। ओके, मान गया? क्योंकि जो इसने मुझे बुरा नहीं कहा, इसका मतलब मुझे खुश हो जाना चाहिए। अब मैं यहां पे दोबारा एग्जिट करता हूं, सॉरी, एग्जिट करता हूं, और अब इसके यहां से भी एग्जिट करता हूं और एनेबल लिखता हूं। इंटर किया, पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि दो थे, मैंने एनेबल उड़ा दिया है। सीक्रेट इसका मतलब पहले वाला मौजूद है, इफेक्टिव हो जाना चाहिए। सिस्को, मैं चला गया। इसको भी उड़ाना चाहते हैं, कॉन्फ टर्मिनल दोबारा करें और लिखें नो एनेबल पासवर्ड, इंटर, ये भी गया। एग्जिट करें, एग्जिट करें, यहां पे लिखे एनेबल, इंटर करें, पासवर्ड निश्ता। तो सिस्को की सबसे खूबसूरती यह है कि करना हो तो याद करो, नहीं करना हो तो बस सिर्फ नो लगाओ। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, एनी अदर क्वेश्चन? मैंने अभी आपको ये जो आप जो भी चीज आप खुद कर रहे हैं, मतलब सिस्टम को कमांड दे रहे हैं, वो रनिंग कॉन्फ़िग के फाइल में जा रहा है। हाँ।
अच्छा, पैकेट ट्रेसर कह रही है। अच्छा, इसको यूं सेव करें और जब इसको एग्जिट करें तो आप कहता है सेव करूं। मिसाल के तौर पे इसका जवाब ये कि मैं नॉर्मली नहीं करता होता ये काम, लेकिन बाजों का गलती से या बाजों को स्टूडेंट को देना होता है इसलिए हो जाता है। आप देखें, ये मिसाल के तौर पे ये था, इसमें अगर आप देखें तो कहीं पे मॉड लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब एक्चुअल फाइल ये 4.38 थी। मैंने इसमें जब काम किया तो मैं इसको जब निकल रहा था, इसको मैंने स्टार्टअप में भी डाल दिया, फिर मैंने इसको कहा कि सेव कर दो, जैसे आप ऑन कहते हैं। तो ये जब सेव करें, नाम चेंज कर लो, नहीं करोगे तो पहले वाले को खत्म कर देगा, वो तो आपको पता है। तो यू कैन, वो मसला नहीं है। नो क्वेश्चन। तो चलें लेडीज एंड जेंटलमैन, इनफ फॉर यू टुडे। होपफुली कि आपने बोर नहीं हुए होंगे। कल आपको मिक्स करूंगा इंशाल्लाह विद द थ्योरी एज वेल, बिकॉज एज पर द प्लान आई वाज प्लानिंग कि जी आई विल बी स्टार्टिंग विद द नेटवर्किंग टुडे विच इज द मॉड्यूल 1 ऑफ द बुक, और मॉड्यूल वो है। तो मुझे ये स्टार्ट करना था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने आज भी अच्छी चीजें सीखी। ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 है, ये जो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 है। तो चैप्टर 2 के भी मैंने आपको आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 के भी, ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको चैप्टर 2 के भी स्लाइड्स दे दी हैं। जी, नाउ नाउ उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करते हैं तो बाज़ औक़ात मैं उस बुक की चैप्टर के साथ अपनी स्टिकिंग छोड़ देता हूं, जो कि छोड़ भी देनी चाहिए। तो एनी हाउ, इज देयर एनी क्वेश्चन? नो? थैंक यू वेरी मच जी, सी यू इंशाल्लाह टुमारो अगेन।